Friends, today we have assembled here for one specific, very important topic on key amendments as per GST Council meeting regarding the circular issued. We have with us Sri Shubham Khaitan, our own patron, our chairman Narayan Agarwal will give brief introduction about him. Before we start our deliberation, let us have our East Bandana. या कुंद तुषारहार धवला यशुप्रभा श्राविता या वीणावरदंडमंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता श्यामां पातु सरस्वती भगवती निशि श्रीजाड्याम्पहम्. Today's topic is very important. Particularly, most of the Charakons may not be aware about the implications this latest circular, particularly on corporate guarantees, will have in the balance sheet of financial year 23-24. Because this liability has accrued on 31st March 24. Now, as per events occurring after balance sheet date, the auditors are required to verify their liability and suitably keep a notes on these balance financial statements. So now I request Sri Narayan Agarwal to introduce today's our speaker. Hello. Good evening, everyone. Today we are here to discuss on two important aspects in GST. One is GST implication on corporate guarantee, and other is recommendation of the GST Council through its 53rd GST Council meetings. There are some important recommendations by 53rd GST Council meetings, and Shubham will deal with some of these recommendations which are most important at the moment. Before that, Shubham will deal with GST implication on corporate guarantee. I think Shubham needs no introduction, so it may be kept aside. Shubham is a well-known name and expert in GST since 2017, the date 1st July 2017 when the GST was introduced. Shubham is an expert and traveling across the country for various presentations and seminars, and he regularly speaks on GST matters. So as on date, Shubham is a very knowledgeable and expert person in GST, and we could not have a better person than Shubham to deal with these issues. But before handing over this session to Shubham, I would like to just take 5 to 10 minutes to introduce what is the issue we have with respect to corporate guarantee. कॉर्पोरेट गारंटी क्या है, क्यों है, कैसे है, ये एज ऑन डेट सबको पता है. बट जीएसटी ऑन कॉर्पोरेट गारंटी है या नहीं है तो कब से है, कितना है, किस रेट पे है, किस वैल्यू पे है, ये अभी तक क्लैरिटी नहीं था. GST was introduced with effect from 1st July 2017 and we are today in 2024 July. More than 7 years. For initial years, शुरू का 4-5 साल जो है डिपार्टमेंट वाज बिजी विथ नोटिसेस विथ रेस्पेक्ट टू ओनली मिसमैच. 1 में ये है, 3B में ये है, 2A में ये है, 2B में वो है, 9 में ये है, रिकॉन्साइल करते रहो. क्वालिटी लिटिगेशंस जीएसटी में अभी तक स्टार्ट प्रैक्टिकली नहीं हुआ है. अभी तक जो लिटिगेशंस चल रहे हैं मोस्टली मिसमैच रिलेटेड लिटिगेशंस ही चल रहे हैं.
टैक्स पेयर्स ऑक्यूपाइड है, प्रोफेशनल्स ऑक्यूपाइड है, क्वालिटी लिटिगेशन अभी भी जीएसटी में स्टार्ट नहीं हुए। कॉर्पोरेट गारंटी पे जीएसटी वैसा ही एक मैटर है विच नीड्स आवर अटेंशन। ये कहानी स्टार्ट हुआ पिछले साल 2023 अक्टूबर से। उसके पहले तक ये डिस्कशंस वाज गोइंग ऑन अमंग डिपार्टमेंट ऑफिसर्स वेदर GST should be leviable on corporate guarantee or not. First time in October 2023, Rule 28 in CGST rules, there was an amendment and sub rule 2 in Rule 28 was inserted. ये रूल ने सिर्फ इतना बोला कि 1% वैल्यू पे जीएसटी लगेगा ऑन कॉर्पोरेट गारंटी, नथिंग एल्स। इससे लेकिन ये क्लैरिटी आया कि दे आर इंटेंडिंग टू टैक्स जीएसटी ऑन कॉर्पोरेट गारंटी, वैल्यू विल बी 1%। अब 1% पर एनम होगा, टोटल में होगा, कैसे होगा, ये क्लैरिटी नहीं था। फर्दर लोगों को लगा कि अक्टूबर 2023 26 अक्टूबर 2023 को इन लोगों ने ये रूल अमेंड किया है। इट मीन्स कि शायद ये प्रोस्पेक्टिव होगा, पुराना पीरियड को लेके कुछ बोला हुआ नहीं था रूल्स में कि ये पहले की पीरियड पे लगेगा। तो इट वाज अ व्यू कि मोस्ट प्रोबेबली ये प्रोस्पेक्टिव ही होगा क्योंकि रूल अभी अमेंड किया है, वैल्यूएशन का मैकेनिज्म इन्होंने अभी दिया है। उसके बाद अभी 4-5 दिन पहले एक नोटिफिकेशन अगेन इशू हुआ विच सब्स्टिट्यूटेड सब रूल 2 ऑफ रूल 28। थोड़ा बेटर क्लैरिटी लाने के लिए सब्स्टिट्यूट किया गया और बोला गया कि 1% बेसिकली पर एनम होगा। पहले ये था कि 1% मतलब क्या, हमने कि जितना गारंटी दिया है पूरा पे 1% या हर साल 1%। तो इन्होंने ये क्लैरिटी लाने के लिए बोला कि 1% पर एनम होगा। और अगेन ये साथ में ये भी बोला गया कि अगर आईटीसी अवेलेबल है रिसिपिएंट को तो जिस वैल्यू पे आप इन्वॉइस कर रहे हैं वही वैल्यू ट्रांजैक्शन वैल्यू माना जाएगा अगर रिसिपिएंट को आईटीसी अवेलेबल है तो। इसके अलावा ये अगेन इस रूल में और कुछ नहीं बोला हुआ है, ये प्रोस्पेक्टिव है, रिट्रोस्पेक्टिव है, कब से लगेगा नहीं लगेगा, इसको लेके रूल ने कुछ नहीं बोला। नेक्स्ट डे सर्कुलर नंबर 225 was issued to clarify various issues pertaining to GST on corporate guarantee। सर्कुलर ने क्या क्या क्लेरिफिकेशंस दिया है वो शुभम विल डील। सिर्फ पहला क्लेरिफिकेशन जो है उससे मार्केट में थोड़ी आग लगी हुई है। फर्स्ट क्लेरिफिकेशन पे, फर्स्ट क्लेरिफिकेशन ये बोल रहे हैं कि ऑल्दो वैल्यूएशन रूल्स 26 अक्टूबर 2023 से अमेंड हुआ बट ये ओनली वैल्यूएशन मैकेनिज्म है। जीएसटी ऑन कॉर्पोरेट गारंटी वाज ऑलवेज लेविएबल फ्रॉम 1 जुलाई 2017 ऑनवर्ड। जब से जीएसटी आया है तब से कॉर्पोरेट गारंटी पे जीएसटी एप्लीकेबल है। अगर एप्लीकेबल है तो अब क्वेश्चंस अराइज होना शुरू हुआ कि अगर 1 जुलाई 2017 से जीएसटी एप्लीकेबल है कॉर्पोरेट गारंटी पे, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस रेज होते हैं कि क्या कॉर्पोरेट गारंटी मतलब सप्लाई ऑफ कॉर्पोरेट गारंटी मतलब एक टैक्सेबल सप्लाई है भी क्या? ये एक सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज माना जा सकता है क्या? टैक्सेबिलिटी एक एस्पेक्ट है। आज टैक्सेबिलिटी को डिस्कस नहीं करेंगे तो बेटर रहेगा क्योंकि ये एक सेपरेट सेशन चाहिए इसको डील करने के लिए कि टैक्सेबल इटसेल्फ है या नहीं है। देन सेकेंड क्वेश्चन की 1% वैल्यूएशन ये जो प्रेस्क्राइब कर रहे हैं कि 1% टैक्सेबल वैल्यू माना जाएगा, ये इटसेल्फ लीगल है या नहीं है? क्या जीएसटी एक्ट बोर्ड को ये पावर देता है कि वो टैक्सेबल वैल्यू फिक्स कर सके कि हम 1% लेंगे या 2% लेंगे इन एब्सेंस ऑफ एनी कंसिडरेशन, क्योंकि कॉर्पोरेट गारंटी में कोई कंसिडरेशन होता नहीं है। नेक्स्ट इशू इसमें जो आता है कि अगर पहले से ही टैक्सेबल है तो क्लेरिफिकेशन ने बोला कि मैकेनिज्म हमने अभी दिया है, टैक्सेबल पहले से है तो पहले जो वैल्यूएशन रूल्स थे उसके हिसाब से ये वैल्यूएशन किया जाएगा। मतलब 1% जो है वो अक्टूबर ऑनवर्ड्स होगा, लेकिन पहले की पीरियड के लिए पहले जो वैल्यूएशन रूल्स था उसके हिसाब से वैल्यूएशन किया जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि क्या पहले जो वैल्यूएशन रूल्स थे वे इतने कॉम्पिटेंट, इतने क्लियर थे कि वो कॉर्पोरेट गारंटी का वैल्यूएशन कर सके? क्योंकि अगर वो क्लियर होते तो इनको अलग से मैकेनिज्म देना नहीं पड़ता। तो वैल्यूएशन रूल्स इटसेल्फ बहुत क्लियर थे नहीं। अगर वैल्यूएशन रूल्स क्लियर नहीं है तो अपने जब से अपने सीए की पढ़ाई कर रहे हैं तब से सुनते हैं पीसी श्रीनिवास शेट्टी का केस इनकम टैक्स में, जहाँ पे बोला गया कि टैक्सेबिलिटी
और वैल्यूएशन इंटीग्रेटेड है, चार्जिंग सेक्शन और वैल्यूएशन इंटीग्रेटेड है। अगर वैल्यूएशन फेल्स तो टैक्सेबिलिटी फेल्स। अगर आप कंप्यूट नहीं कर पा रहे हैं टैक्स लायबिलिटी तो चार्जेबिलिटी नहीं आएगी। तो यहाँ पे टैक्सेबिलिटी और वैल्यूएशन इंटरलिंक्ड है। तो क्या जो पहले प्रोविजंस थे वैल्यूएशंस के वो इनफ है कॉर्पोरेट गारंटी का वैल्यूएशन के लिए? एज्यूमिंग ये सारा चीज अपने क्लियर कर भी लेते हैं तो आगे क्या 1/7/2017 से टैक्सेबल है बोल रहे हैं, तो टैक्स पेयर्स को क्या करना पड़ेगा? क्या उनको अब इनवॉइसेस इशू करनी चाहिए 2024 में फॉर अर्लियर पीरियड्स? अगर इनवॉइस इशू करते हैं तो किस वैल्यू पे करेंगे, क्योंकि नया वैल्यूएशन मैकेनिज्म तो अक्टूबर से आया है। पहले का मैकेनिज्म क्या होगा वैल्यूएशन का? क्या रिसिपिएंट को आईटीसी मिलेगा इस पे अगर आज हम इनवॉइसेस इशू करते हैं पुरानी पीरियड को लेके? क्या डिपार्टमेंट 17, 18, 18, 19, 19, 20 ये सारी पीरियड्स नॉर्मल कोर्स में टाइम बाद हो चुकी है अंडर सेक्शन 73। तो क्या सेक्शन 74 बाय इन्वोकिंग सेक्शन 74 एंड क्लेमिंग सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स एंड फ्रॉड और एसेट्रा डिपार्टमेंट अब डिमांड कर सकता है जिन लोगों ने पेमेंट नहीं किया पुरानी पीरियड का, उनको अब नोटिस इशू की जा सकती है अंडर सेक्शन 74 टू डिमांड जीएसटी ऑन कॉर्पोरेट गारंटी। नेक्स्ट इन्होंने बोला कि आप 5 साल के लिए कॉर्पोरेट गारंटी दे रहे हैं तो 5% टैक्स पहले दे दो 1 ईयर के हिसाब से। नेक्स्ट ईयर अगर रिवोक हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, चेंज हो जाता है तो जीएसटी जो पेमेंट किया हुआ उसका क्या होगा? और मोस्ट इम्पोर्टेंटली एज एन ऑडिटर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में तो किसी ने पेमेंट किया नहीं है। फॉर द बैलेंस शीट पीरियड एंडिंग ऑन 31 मार्च 2024 क्या ऑडिटर को कोई क्वांटिफिकेशन करके देने का जरूरत है एज अ कंटीजेंट लायबिलिटी या किसी और तरह से, या किसी डिस्क्लोजर की जरूरत है कि कॉर्पोरेट गारंटी पे जीएसटी का पेमेंट नहीं हुआ है और इस रीजन से नहीं हुआ है, इस टाइप का कोई डिस्क्लोजर कुछ भी ऑडिटर के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है? विथ ऑल दीज इशूज आई हैंड ओवर दिस सेशन टू शुभम केतन। Thank you so much to all the dignitaries here. Thank you so much for giving me this opportunity. Thank you to Apurva sir, President sir, Narayan ji, everyone here. I acknowledge your presence and really happy to be speaking in front of you. तो कॉर्पोरेट गारंटी आप सबको पता है कि बहुत बड़ा इशू हो रखा है जीएसटी में। जिस दिन फर्स्ट टाइम ये डिस्कस हुआ था काउंसिल मीटिंग में कि कॉर्पोरेट गारंटी पे शायद टैक्स आ जाए, तो हमें ऐसा लगा था कि ये बहुत ही एब्सर्ड सा सिचुएशन है, क्योंकि कॉर्पोरेट गारंटी जैसी चीज जो दो कंपनी, एक होल्डिंग कंपनी अपने सब्सिडियरी के बिहाफ में बैंक को देती है, या कोई ऐसी गारंटी जो किसी और थर्ड पार्टी वेंडर को दी जाती है, क्या इसके ऊपर टैक्सेबिलिटी आनी चाहिए? अगर टैक्सेबिलिटी की हम बात करें जीएसटी में, सप्लाई ऑफ सर्विसेज बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्संस इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई माना जाता है। मतलब दो रिलेटेड पार्टी हैं, उनका अगर कोई भी आपस में ट्रांजैक्शन होता है जिसमें कोई कंसिडरेशन नहीं है तो उसको सप्लाई मानी जाती है। अब कॉर्पोरेट गारंटी जैसी चीज नॉर्मली अगर मुझे किसी थर्ड पार्टी को देनी पड़ती तो मैं हमेशा उसके लिए कुछ चार्ज करता, पर इन दिस केस हम लोग इसमें कुछ चार्ज नहीं करते या फिर बहुत कम अमाउंट चार्ज करते हैं, विच इज नॉट ऑलवेज द मार्केट रेट। तो इसके ऊपर यह सवाल उठा कि कॉर्पोरेट गारंटी अगर टैक्सेबल होगी तो किस वैल्यू पे होगी। ऐसा पहली बार 52nd जीएसटी काउंसिल मीटिंग में उठाया गया ये मुद्दा, और उसके बाद ये वैल्यूएशन रूल को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि 1% ऑफ द guaranteed amount और एक्चुअल कंसिडरेशन whichever is higher के ऊपर टैक्स लगाई जाए। अब ये 1% जो अमाउंट है वो लॉजिकल है, इलॉजिकल है, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। अब ये बोल दिया गया कि ये वैल्यूएशन रूल इज एप्लीकेबल फॉर ऑल कॉर्पोरेट गारंटीज। तो एक बार मैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन देता हूं कि 52nd जीएसटी काउंसिल मीटिंग में क्या आया कि वेयर कॉर्पोरेट गारंटी इज प्रोवाइडेड बाय कंपनी टू बैंक्स फॉर क्रेडिट फैसिलिटीज टू अदर कंपनी, or where both companies are related, the activity will be treated as supply of services between related party as per schedule 1। तो
ये हमें ध्यान रखना है। शायद ये चीज हाईलाइट अभी हो रही है कि ये ट्रांजैक्शन का उसके पहले क्या होगा, बट ये हाईलाइट फर्स्ट टाइम जब अमेंडमेंट आई थी तो ही हमें हो गया था कि जब ये वैल्यूएशन रूल अभी आ रहा है, इसका मतलब ये सप्लाई तो टैक्सेबल है, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है। आज तक उसके पहले का वैल्यूएशन रूल क्या होगा, वो क्लैरिफिकेशन अगर मैं बोलूं नहीं भी आता तो भी इंप्लीकेशन वही होता जो क्लैरिफिकेशन में लिखा है। बट पॉइंट इज कि फ्रॉम 1 जुलाई 17 से ये सप्लाई टैक्सेबल थी। वैल्यूएशन रूल में सिर्फ इतना लिखा था कि 1% ऑफ द अमाउंट गारंटीड और एक्चुअल अमाउंट व्हिचएवर इज हायर के ऊपर ये टैक्स लगेगा। अब ये पहले हम बात करते हैं कि अभी जो आफ्टर 26 अक्टूबर 2023 जो अमेंडमेंट आया है, अब हमें क्या करना है, पहले उसके बारे में बात करते हैं। फिर उसके बाद हम क्लियर करते हैं कि उसके पहले का पोजीशन जब ये अमेंडमेंट नहीं आया हुआ था तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज और रेपरकशंस आ सकते हैं, क्योंकि अभी के पोजीशन को देखेंगे तो काफी हद तक हमें क्लैरिटी आएगी कब एप्लीकेबल है, कब ये एप्लीकेबल नहीं है। हेलो, अभी ठीक आ रहा है? ओके। तो ये रूल को सबसे पहले तो 26 अक्टूबर 2023 से लाया गया था, जिसमें 1% और एक्चुअल कंसिडरेशन विचएवर इज हायर बोला इन्होंने। लेकिन सवाल ये उठा, क्या हर पर्सन को ये वैल्यूएशन रूल फॉलो करना है, भले ही उसके बुक्स में कोई कॉर्पोरेट गारंटी का अमाउंट नहीं दिखाया हुआ, सामने वाले को फुल आईटीसी मिल जाएगा? क्या हर आदमी को ये वैल्यूएशन रूल फॉलो करना है? तो उस समय ऐसा लग रहा था हाँ, हर आदमी को, हर जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन को फॉर ऑल कॉर्पोरेट गारंटीज यही रूल फॉलो करना होगा, 1% या एक्चुअल कंसिडरेशन विचएवर इज हायर। लेकिन फॉर मल्टीपल रीजंस, ड्यू टू लैक ऑफ क्लैरिटी, अभी तक लोग इसको पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं कर पाए थे टू अ ग्रेट एक्सटेंट। नाउ एक क्लैरिफिकेशन आया विच इज अ वेलकम क्लैरिफिकेशन कि, और इनफैक्ट लॉ में अमेंडमेंट भी आ गया टू दैट एक्सटेंट कि अगर आपका फुल आईटीसी रेसिपिएंट को अवेलेबल है तो इन दैट केस हम कोई भी वैल्यू दिखाए कॉर्पोरेट गारंटी का, जो भी वैल्यू अपने बुक्स में दिखाते हैं, उस वैल्यू के ऊपर जीएसटी चार्ज कर सकते हैं, जो वैल्यू दिखाए। अभी आ रहे हैं सर उस चीज के ऊपर। अभी पहले हम देखते हैं कि अगर फुल आईटीसी अवेलेबल है तो 1% का क्राइटेरिया भी मेरे लिए रिक्वायर्ड नहीं है। इन ईच एंड एवरी केस मैं जो भी वैल्यू दिखाऊं उसके ऊपर जीएसटी चार्ज कर सकता हूं, इन इररेस्पेक्टिव ऑफ द एक्चुअल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो बुक्स में मैं जो भी वैल्यू दिखाऊं, शर्त यह है आईटीसी पूरा एलिजिबल होना चाहिए रेसिपिएंट को। तो सप्लायर अगर दे रहा है तो रेसिपिएंट के हाथ में वो क्रेडिट ब्लॉक नहीं होना चाहिए, उसका आउटवर्ड सप्लाई टैक्सेबल होना चाहिए। आउटवर्ड सप्लाई अगर टैक्सेबल है और उसका लेट्स से रेस्टोरेंट है, 5% का रेट है, तो इनपुट नहीं मिलता उसको, इन दोस केसेस ये एप्लीकेबल नहीं रहेगा। या फिर कोई ऐसी सप्लाई है जिसमें मैं टैक्सेबल सप्लाई भी करता हूं, एग्जाम सप्लाई भी करता हूं मैं, तो इन दैट केस मुझे प्रोपोर्शनल रिवर्सल करना पड़ता है उसका। मैं पैकेज राइस भी बेचता हूं, अनपैकेज राइस भी बेचता हूं, तो वो एग्जाम्ड भी है, टैक्सेबल भी है। तो इन दैट केस मैं ये वैल्यूएशन मैकेनिज्म नहीं ले सकता क्योंकि मुझे पूरी आईटीसी नहीं मिलेगी, प्रोपोर्शनल मिलेगी। तो इन सब केसेस में ये वैल्यूएशन रूल्स एप्लीकेबल नहीं है, बट एक्सेप्ट दिस सिचुएशन इन ऑल केसेस इट इज एप्लीकेबल। एक क्वेश्चन ये आएगा, अगर मैंने वैल्यू कुछ दिखाया ही नहीं अपने बुक्स में और कुछ चार्ज भी नहीं किया जीएसटी, लेकिन पूरा आईटीसी एलिजिबल था, अगर करता तो क्या सिचुएशन होगा? इसको लेकर क्लैरिफिकेशन ये है, इस सर्कुलर के थ्रू नहीं है, बट सर्कुलर 199, सर्कुलर 210 जो पहले सर्कुलर इशू हो चुकी हैं, जहां पे ये बोला गया है कि दो रिलेटेड पार्टी के बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है और फुल आईटीसी एलिजिबल होता है, तो अगर आप कुछ वैल्यू नहीं डिक्लेयर करते हो तो नील विल बी डीम टू बी द ओपन मार्केट वैल्यू। ऐसा जरूरी नहीं है 1 रुपया डिक्लेयर करना है, 2 रुपया डिक्लेयर करना है, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर मैंने कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया लेकिन डिक्लेयर करता तो पूरा आईटीसी मिलता, तो इन दैट केस देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ डिक्लेयरिंग एनी वैल्यू। हाँ सर, हाँ सर, हाँ हाँ सर। पर्सनल गारंटी अभी थोड़ा कॉर्पोरेट गारंटी के ऊपर, इंटर कॉर्पोरेट गारंटी की बात करें, पर्सनल गारंटी भी मैं डाल के रखा हूं आज के डिस्कशन में
ये अपना कॉर्पोरेट गारंटी कवर हो जाएगा तो पर्सनल गारंटी के ऊपर भी आएंगे। जानबूझ के डाल के रखा हूँ, 52nd मीटिंग में आया था, इस बार नहीं आया फिर भी, क्योंकि ये टॉपिक्स आई न्यू की क्वेश्चंस आ सकते हैं इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को लेके, तो मैं उसको कवर करूंगा। तो ये पहला पार्ट हुआ जिसमें हम बात करते हैं अगर नो वैल्यू इज अज्यूम तो क्या होगा। फिर नेक्स्ट, अगर फुल अब सर एनबीएफसी के साथ रूल्स क्या है कि आपको आईटीसी ले सकते हैं आप 50%। उसका बैंकिंग एंड एनबीएफसी का एक एफएक्यू आया था जो बोलता था कि जो ओपन मार्केट वैल्यू वाला वैल्यूएशन मैकेनिज्म है, क्या इसमें हम मानेंगे कि फुल आईटीसी मिलता है? कि 50% ही मिलता है। अगर मैंने 100 रुपए का वैल्यू चार्ज किया उसको 50% मिलता है। तो इसमें ये क्लैरिफिकेशन है कि उसको ये माना जाएगा एज इफ उसको फुल आईटीसी मिलता है। हाँ, तो एनबीएफसी से एनबीएफसी को सप्लाई हुई, एनबीएफसी टू अनदर कॉर्पोरेट कंपनी सप्लाई हुई क्या? कि एनबीएफसी टू एनबीएफसी सर के एग्जांपल में? अच्छा, तब रेसिपिएंट को जिसको गारंटी, जिसके बिहाफ में गारंटी दी है, उसको अगर चार्ज करता मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को, क्या उसको फुल आईटीसी मिलता? सर्विस प्रोवाइडर मैं रेसिपिएंट के पर्सपेक्टिव से देखूंगा क्या उसको फुल आईटीसी मिलता। तो फिर मैं तुम्हें कुछ भी वैल्यू दिखाऊं एनबीएफसी कंपनी के नाते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुराने केसेस पे आ रहे हैं सर, अभी हम लोग बात करें सिर्फ अभी जो अमेंडमेंट आया है 26 अक्टूबर 23 से, आज के डेट पे क्या पोजीशन है, फिर हम बात करेंगे पुराने पे क्या पोजीशन है। हाँ, एक्सपोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उस पर फुल आईटीसी मिलता है। एग्जेम्प्ट सप्लाई जिसके अगेंस्ट 40 टू 43 का रिवर्सल इन्वॉल्व है, वहां पे बोल सकते हैं, तब वहां पे उसको करना पड़ेगा, बट कोई भी वैल्यू लेके हम नहीं कर सकते, तब हमारे लिए रूल एप्लीकेबल है। बेसिकली क्या मैं कहना चाह रहा हूं, अगर एक फुल आईटीसी अवेलेबल है तो कोई वैल्यूएशन रूल सोचना ही नहीं है। आप चार्ज करो, नहीं करो, करते हो तो जो वैल्यू लेना है वो वैल्यू लो, डज नॉट मैटर, आपका मन। वो कब एप्लीकेबल है? जब फुल आईटीसी नहीं मिलता, तभी ये रूल एप्लीकेबल है, इवन आफ्टर 26 अक्टूबर 23। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं कि मैं डिस्कशन को दो भाग में बाइफरकेट कर दिया टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन। अभी हम लोग बिफोर अक्टूबर 23 का बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग सिर्फ अक्टूबर 23 के बाद का बात कर रहे हैं। उसमें दो सिचुएशन का बात कर रहे हैं, पहला जब फुल आईटीसी अवेलेबल है, दूसरा जब आईटीसी अवेलेबल नहीं है। जब फुल आईटीसी अवेलेबल है तो आप जो वैल्यू डिक्लेयर करो वो मान लिया जाएगा ओपन मार्केट वैल्यू। अगर फुल आईटीसी अवेलेबल नहीं है, तब इन दैट केस ये सवाल उठता है कि 1% और ट्रांजैक्शन वैल्यू विच एवर इज हायर। जनरली ब्रांच और एचओ के बिहाफ में कोई लोन नहीं देता, लोन एंटिटी को दिया जाता है। कॉर्पोरेट गारंटी जनरली बिटवीन टू कंपनीज होती है, टू ब्रांचेस नहीं होती है। उसके बिहाफ में जनरली गारंटी नहीं दी जाती। करेक्ट, करेक्ट। कोई भी ग्रुप कंपनीज वगैरह इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी। तो जहां फुल आईटीसी अवेलेबल नहीं है, अब ये सवाल, अब इसमें क्वेश्चंस आएंगे कि ये 1% कैसे कंप्यूट होगा, क्या कंप्यूट होगा, कि हम लोग किस किस बेस वैल्यू को लेके करेंगे। हाँ, करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। अब वो नहीं करते हैं तो सर्कुलर 199 क्या बोलता है क्रॉस चार्ज को लेके, जो सर्कुलर आया था कि अगर आपने कुछ भी वैल्यू डिक्लेयर नहीं किया तो नील मान लिया जाएगा वैल्यू को। 210 अभी, वो भी आपका 10 दिन पहले ही आया है, सर्कुलर 26 जून को आया है। वो था फॉर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, जहां पे अगर मैंने रिलेटेड पार्टी से कोई सर्विसेज इंपोर्ट किया, वहां पे अगर मैंने कोई कंसिडरेशन पे नहीं किया लेकिन फुल आईटीसी अवेलेबल होता,
तो ये क्लैरिफिकेशन आया कि फॉर द पास्ट पीरियड ऑल्सो नील वैल्यू डिक्लेयर अगर आप करते हो तो भी वो कंप्लायंस मान लिया जाएगा। तो मेरा लॉजिक यहां पे भी सेम आ रहा है, एनालॉजी सेम है, नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा। हाँ, तो रेसिपिएंट को फुल आईटीसी मिलता, सप्लायर रजिस्टर्ड ही नहीं है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, नहीं चार्ज किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज ये प्रूव करना है कि रेसिपिएंट को फुल आईटीसी मिलता। गिवन दैट ग्रुप कंपनीज, इट इज अज्यूम्ड कि सप्लायर को पता होगा कि रेसिपिएंट को फुल आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ, कोई लाइबिलिटी नहीं है। नहीं, रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या रेसिपिएंट को अगर मैं चार्ज करता तो पूरा आईटीसी मिलता कि नहीं मिलता, इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ देना है अपने को। बिल्कुल, हमारे क्लाइंट्स कुछ कुछ ऐसे थे, जब ये क्लैरिफिकेशन तो अभी आया कि हम लोग को और ये अमेंडमेंट भी लॉ में अभी रेट्रोस्पेक्टिव डेट से 26 अक्टूबर 23 से आया कि कोई भी वैल्यू आप चार्ज करो तो मान लिया जाएगा। उसके पहले तो क्लैरिफिकेशन, उसके पहले तो अमेंडमेंट ये था कि 1% सबको चार्ज करना है। जब ये रूल था तो बहुत सारे ऐसे होल्डिंग कंपनीज थे जो काम, जिनका खाली होल्डिंग करना था, जिनका बिजनेस कुछ था ही नहीं। ऐसी बहुत सारे ग्रुप कंपनीज आजकल आप कॉर्पोरेट्स में देखोगे, ग्रुप कंपनीज बनाई भी रहती हैं जो एक्चुअल कुछ काम नहीं करती, उनके बहुत सारे अलग अलग बिजनेस वर्टिकल्स होते हैं, सारे बिजनेस वर्टिकल्स की अलग अलग कंपनीज बनाई हुई होती हैं। जितनी बिजनेस वर्टिकल्स होती है सब लोग लोन लेते हैं, लेकिन सारे प्रमोटर्स की होल्डिंग जो होती है वो कॉर्पोरेट में होती है, वो जो हेड कंपनी है ग्रुप कंपनी की उसमें होती है, और वो ग्रुप कंपनी इन टर्न बाकी सारे कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करके रखती है। तो प्रमोटर्स क्योंकि चाहते ही नहीं कि इतने सारे कंपनी में अपना नाम दिखाएं एज अ शेयर होल्डर, तो वो चाहते हैं हम एक ही कंपनी में दिखाएं। आप अगर टाटा सन्स का एग्जांपल ले लो, ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं जो सेम काम करते हैं। तो इन सच केसेस जो ग्रुप कंपनी थी जिसके पास कोई काम नहीं था, उसको ओनली फॉर द पर्पस ऑफ कॉर्पोरेट गारंटी 1% अमाउंट को लेके चार्ज करके उसका रजिस्ट्रेशन लेना पड़ा, और रेसिपिएंट को पूरा आईटीसी यूटिलाइज करने का भी मौका नहीं मिला क्योंकि वो धीरे धीरे यूटिलाइज कर पा रहा था। गारंटी अमाउंट बहुत बड़ा होता है। हाँ, करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल। हाँ, 1% पर एनम और ट्रांजैक्शन वैल्यू विच एवर इज हायर। अब उसके ऊपर भी आते हैं, अब हम उसके ऊपर बात करते हैं, वो कैसे कंप्यूटेशन होगा, क्या होगा, उसके ऊपर आ जाएंगे। हाँ, अब हम आते हैं, अब इसके ऊपर जो क्लैरिफिकेशन आया है कि 1% पर ईयर होगा, किस वैल्यू पे होगा, कैसे कंप्यूट करेंगे, क्योंकि देखिए इसमें कुछ कुछ चीजें हैं, अगर एक्चुअल कंसिडरेशन चार्ज की है वो हायर है तब तो क्वेश्चन खत्म। 1% ऑफ गारंटीड अमाउंट का क्या मतलब होता है? सबसे पहले अगर मैंने कॉर्पोरेट गारंटी, पहले केस में हम एज्यूम करते हैं मैंने कॉर्पोरेट गारंटी 5 साल के लिए एक बार में दी, तो क्या मुझे हर साल 1-1% चार्ज करना है या फर्स्ट ईयर में 5% चार्ज करना है? इसमें यह बोला गया है जब भी कॉर्पोरेट गारंटी दी जाती है या फिर रिन्यू की जाती है, उस समय पे वो ट्रिगर इवेंट आएगा कि हमें जीएसटी चार्ज करना है। बाकी ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि एवरी ईयर करना है। अब आया क्वेश्चन, 1% तो पर एनम दिया हुआ है, मैंने 5 साल के लिए दिया तो हर साल चार्ज नहीं करूंगा तो क्या? मैंने इस साल कॉर्पोरेट गारंटी दी 100 करोड़ रुपए की, तो 100 करोड़ रुपए के ऊपर 5 साल के लिए मैंने अगर कॉर्पोरेट गारंटी दी तो 5% ऑफ 100 करोड़, 5 करोड़ के ऊपर जीएसटी आज मुझे चार्ज करना है, और ट्रांजैक्शन वैल्यू विच एवर इज हायर। 5 साल तक चार्ज एवरी ईयर नहीं करना। वहीं पे मैं कॉर्पोरेट गारंटी 1 साल के लिए देता हूं, फिर अगले साल रिन्यू करता हूं, फिर उसके अगले साल रिन्यू करता हूं, तो 1-1 करोड़ एवरी ईयर देना पड़ेगा मुझे। और ट्रिगर इवेंट 20, हाँ, और ट्रिगर इवेंट आफ्टर 26 अक्टूबर 23 होना चाहिए। सौ करोड़ के ऊपर मान लेते हैं 1% हुआ तो हुआ 1 करोड़ रुपया, उसके ऊपर मान लेते हैं 5 साल का हुआ तो 1% पर एनम है तो 5% हो गया, तो 5 करोड़ रुपया के ऊपर 18%, 90 लाख रुपया। तब कोई इशू नहीं है, बिल्कुल।
अगर रजिस्टर्ड है तब तो देना पड़ेगा, अगर रजिस्टर्ड नहीं है और 20 लाख तक के नीचे है तब बच जाएगा। नहीं, अगर एग्जेम्प्ट होगा तब मेरे ऊपर वैल्यूएशन नॉर्म लागू होगा, राइट? करेक्ट। वैल्यूएशन नॉर्म क्या 1% ऑफ रिकवरी है। अगर आपका कोई एंटिटी 100% अगर सप्लाई कर रहा है उसमें कोई भी एक्सेप्टेड एंटिटी नहीं है, तब आप कोई भी वैल्यू करके कर सकते हैं, चल जाएगा, कोई भी वैल्यू करके कर सकते हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। 6 महीने का अगर आप गारंटी देते हो तो 0.5% होगा, ऐसा भी पॉसिबल है। प्रोपोर्शनेट इज नॉट मल्टीप्लीकेशन, इट इज ऑलवेज इट ऑल्सो डिवीजन, मतलब बेसिकली हम लोग को प्रोपोर्शनेट लेना है इन एवरी केस। एंड ये क्लैरिफिकेशन आ गया, कॉर्पोरेट गारंटी सिर्फ और सिर्फ इट इज ओनली एप्लीकेबल टू रेसिपिएंट विच इज विद इन इंडिया। पहले ये नहीं था लॉ में, अभी वर्ड इन इंडिया भी आ गया। और अगर आउटसाइड इंडिया है डज नॉट मीन कि उसके ऊपर नहीं लगेगा, उसके लिए ये वैल्यूएशन रूल एप्लीकेबल नहीं है, उसके लिए नॉर्मल रूल अभी भी एप्लीकेबल है। सप्लायर विद इन इंडिया, रेसिपिएंट आउटसाइड इंडिया। मान ले इसका मतलब कोई इंडियन कंपनी है जिसकी एक सब्सिडियरी इंडिया के बाहर है और उसने उस सब्सिडियरी के बिहाफ में किसी भी बैंक को गारंटी दी है, तो कॉर्पोरेट गारंटी यहां से प्रोवाइड हुई, सर्विसेज यहां से प्रोवाइड हुई, लेकिन वैल्यूएशन रूल ये 1% वाला एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि उसको आईटीसी वाला प्रॉब्लम रहेगा इसमें, क्योंकि रेसिपिएंट को तो आईटीसी मिलने वाला ही नहीं है कुछ, कि वो आउटसाइड इंडिया है। तो इन दैट केस नॉर्मल रूल्स जो अभी एप्लीकेबल होता है, जो हम लोग अभी बात करेंगे वही सब एप्लीकेबल होगा, 1% वाला एप्लीकेबल नहीं होगा, वो रूल्स के ऊपर अभी बात करेंगे। अब सवाल उठता है, वो उसके ऊपर ये सवाल उठेगा, हाँ, कि अब रेसिपिएंट अगर आउटसाइड इंडिया है तो नॉर्मल वैल्यूएशन रूल्स अगर एप्लीकेबल होता है, दैट इज द सेम जो हम लोग का बिफोर 26 अक्टूबर 23 था, तो वही हम लोग सेम रूल अभी बात करेंगे क्या हो सकता है उसके ऊपर। अच्छा, एक इसमें और चीज है जो लास्ट चीज में क्लैरिफाई करता हूं, जिससे हम लोग एज ऑन डेट विद इन इंडिया का सारा पोजीशन जान क्लियर हो जाए, तब हम लोग नेक्स्ट पोजीशन पे मूव करेंगे। कि अगर मैंने गारंटी दी 100 करोड़ की, लेकिन रेसिपिएंट ने जो लोन लिया वो सिर्फ 50 करोड़ का लिया, क्योंकि गारंटी हमेशा बड़ी अमाउंट की दी जाती है, सैंक्शन अमाउंट तो बहुत बड़ा होता है, बट सैंक्शन अमाउंट के साथ एक्चुअल जो सामने वाले को लोन जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है वो उतना उतना ड्राइंग पावर अपना यूज कर सकता है। तो सवाल ये उठता है कि ये वैल्यू क्या होगी, 100 करोड़ के ऊपर 1% या फिर 50 करोड़ के ऊपर 1%। तो यहां पे भी क्लैरिफिकेशन है जो बोलता है कि 1% ऑफ द इंटायर गारंटीड अमाउंट 100 करोड़ के ऊपर। हाँ, तो अब ये एक नेक्स्ट सिचुएशन है कि अगर 5 लोग गारंटी दे रहे हैं तो इन दैट केस प्रोपोर्शनेट लिया जाएगा। अगर मतलब अगर 100 करोड़ की गारंटी 4 लोगों ने मिलकर दी है, 4 कंपनीज ने मिलकर 100 करोड़ की गारंटी दी है, तो जितना जितना गारंटी दिया, एक ने 30 दिया, एक ने 20 दिया, एक ने 40 दिया, ऐसे करते करते उसका जो प्रोपोर्शनेट 1% भी है वो भी प्रोपोर्शनेट बनता जाएगा। हाँ, सॉरी, हाँ 20 लाख का लिमिट होगा तो बच जाएगा। बट सर मैक्सिमम केसेस में कॉर्पोरेट गारंटी जो होती है वो 20 लाख से कम वाली कंपनीज नहीं देती, करोड़ों में लोन होता है, अगर कुछ फ्यू करोड़ में लोन होता है तो ही कॉर्पोरेट गारंटी होती है। हाँ, उसका 1% अपने को निकालना होगा। तो अगर उसने 20 करोड़ तक का गारंटी दिया है तब बच जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ओके।
तो अब आफ्टर 26 अक्टूबर 23 कोई पोजीशन में और कुछ डिस्कशन? लेट्स मूव अहेड. हाँ, मैम तब एप्लीकेबिलिटी उसकी जो होगी ना वो 1 ईयर होगी, फिर रिन्यूअल करानी पड़ेगी, क्योंकि अगर मुझे रिन्यूअल में नहीं कराऊंगा तो वो एक्सपायर हो जाएगा इन एनी केस. तो वो 5 ईयर्स 1% पर ईयर होगा. फिर वो जब मुझे रिन्यूअल नहीं कराना पड़े उसमें हम मानते हैं कि 5 ईयर्स के लिए दी गई है. बिल्कुल. ओके, ये नॉर्मल केस भी है. दो कंपनी का आपस में सप्लाई हो रहा है, फिर उसके बाद उसका मर्जर हो गया. जब तक वो दोनों कंपनीज अलग अलग हैं उस दिन कोई ट्रिगर इवेंट है सप्लाई का तो वो उस दिन एप्लीकेबल है. उसके बाद अगर कुछ भी ट्रांजैक्शन लेट्स से पुराने ट्रांजैक्शन को कुछ अफेक्ट नहीं करेगी. उसके बाद जो ट्रांजैक्शन होगी आपस में वो बिटवीन द सेम पार्टी होगी. नहीं, तब तो बिलिंग नहीं होगी. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. जिस दिन मर्जर हो गया उसके बाद से बिलिंग नहीं होगी. जब मर्जर हुई जो जिस दिन मर्जर का इफेक्टिव डेट था उसके पहले तक जो दोनों एंटिटी अलग अलग थी और टाइम ऑफ सप्लाई का इवेंट जो एज पर टाइम ऑफ सप्लाई वो अगर अट्रैक्ट हो जाता है उसके पहले, मतलब जब मर्जर हुआ उसके पहले अट्रैक्ट हो जाता है तो फिर इन दैट केस टैक्सेबिलिटी है. फिर ये फिर टैक्सेबिलिटी हट नहीं जाएगी सिंपली बिकॉज बाद में मर्जर हुआ है. वन ईयर. आप जब आप ट्रिगर इवेंट आपका आ रहा है तो आपको नहीं पता कि लाइबिलिटी कितने दिन के लिए बन रही है. तब तो आपका उसी दिन बन गया. वैल्यूएशन, ये सिर्फ वैल्यूएशन मैकेनिज्म है. पर एनम का जो मेथड है दैट इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन. इसमें ये इसका ये मतलब नहीं है कि ये वैलिड है फॉर 1 ईयर. इसका मतलब है कि आज के डेट पे ट्रांजैक्शन हुआ, आज के डेट पे आप इसका वैल्यू कैसे कंप्यूट करो. चल जाता कोई इशू नहीं है, बट एज ऑफ डेट आपका अट्रैक्ट हो चुका है, मर्ज हो गया, उसके बाद तो वो ट्रांजैक्शन एप्लीकेबल नहीं है, ट्रिगर इवेंट नहीं आएगा. ये खाली देखिए प्रैक्टिकली हो सकता है, पर जनरली वैल्यूएशन रूल फर्स्ट डे है. जब अगर कोई आदमी प्लानिंग कर रहा है तो वो थोड़ा ढंग से प्लानिंग करे कि हाँ मेरा इतने में मर्जर हो सकता है, तो मैं फर्स्ट डे क्यों इतना बड़ा अमाउंट कितने साल के लिए क्यों दूं. ये एक्चुअली से वैल्यूएशन मैकेनिज्म है, ये सर्विस के लिए नहीं है कि ये इतने दिन के लिए वैलिड है. ये ऐसा कुछ नहीं है इसमें. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. सही बात है. हर साल रिन्यू करो बस. वैलिडिटी, द पॉइंट इज क्रेडिट नोट इज एप्लीकेबल इन ओनली 3 केसेस: सेल्स रिटर्न, डेफिशिएंसी इन प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, या फिर टैक्सेबल वैल्यू चार्ज इन द इनवॉइस इज मोर देन द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द एक्चुअल सप्लाई. ये 3 केस एप्लीकेबल है. उसको छोड़ के क्रेडिट नोट लीगली जीएसटी में परमिसेबल नहीं है. ओके, फर्स्ट
26 अक्टूबर 23 के पहले का क्या सिचुएशन है? तो इसमें ये बोला गया है कि वैल्यूएशन रूल्स वुड बी एप्लीकेबल। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, शायद अगर आप लोग प्रैक्टिकली सुने होंगे तो उसके पहले 26 अक्टूबर 23 के पहले तक इसको लेके ऑफिसर्स बहुत एक्टिव थे। ऑफिसर्स को ये पता था कि ये लाइबिलिटी आ सकती है, ये बहुत बड़ी लाइबिलिटी आ सकती है। तो उनका क्या कहना रहता था कि आपने ये वैल्यूएशन रूल्स एप्लीकेबल नहीं करवाया, वैल्यूएशन आपने नहीं किया, इसको टैक्स चार्ज नहीं किया, तो हम लोग क्या करेंगे, जितना भी बैंक का वैल्यू सिमिलर गारंटी है, यस, सिंस ये रिलेटेड पार्टीज हैं, हम लोग को सिमिलर अमाउंट अगर बैंक गारंटी देती है आपके बिहाफ में तो कितना चार्ज करती, तो वैल्यूएशन रूल्स उसके बेसिस पे निकाल के करेंगे। तो जिससे वैल्यूएशन रूल्स बोलता भी क्या है, नॉर्मल रिलेटेड पार्टी के बीच में ओपन मार्केट वैल्यू है तो वो निकाल दो, दिस इज नॉट एन ओपन मार्केट वैल्यू प्रोडक्ट, कि आप मोबाइल खरीदते हो मार्केट में क्या वैल्यू है तो आप निकाल दो उसको। सेकेंड इज वैल्यू ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी। तो सर्विसेज में इट कैन बी डिस्प्यूटेड दैट देयर इज अ लाइक काइंड एंड क्वालिटी, एंड इट कैन ऑल्सो बी डिस्प्यूटेड कि ये नहीं है लाइक काइंड एंड क्वालिटी, क्योंकि आप बैंक जो मुझसे रेट चार्ज करेगा वही सेम रेट इट इज क्वाइट नेचुरल कि दो कंपनी आपस में चार्ज नहीं करेगी। बैंक के नॉर्म्स विल बी क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम टू कंपनीज, अगर इंडिपेंडेंट कंपनीज भी हो तो भी। तो इसका वैल्यूएशन निकालना लाइक काइंड एंड क्वालिटी से डिफिकल्ट है। तो ये नेक्स्ट मेथड हुआ। फिर थर्ड आएगा कि हम लोग 110% ऑफ कॉस्ट निकालेंगे, बट इसमें कोई कॉस्ट नहीं जा रहा है किसी के पास, तो वो वैल्यूएशन मेथड अगेन फेल होगा। या फिर रीजनेबल प्रिंसिपल्स इन अकॉर्डेंस विद लॉ, जो भी आप इन सारे रीजनेबल प्रिंसिपल्स में कोई वैल्यू नहीं है, आपके हिसाब से जो रीजनेबल है आप लगा दो। तो बिफोर 26 अक्टूबर 23 एक चीज का क्लैरिफिकेशन वंस अगेन आ गया, जो नहीं भी आता तो भी क्लियर था, कि अगर फुल आईटीसी अवेलेबल है तो इन दैट केस आप जो भी वैल्यू चार्ज किए हो उसको मान लिया जाएगा। कोई वैल्यू चार्ज नहीं किए हो तो भी सेम सर्कुलर 199 और 210 एप्लीकेबल है, तो देयर विल बी नो जीएसटी। तो ये पहले का पोजीशन अभी का पोजीशन सेम है। आईटीसी पूरा एलिजिबल है तो इसमें कुछ दिमाग लगाने का नहीं है। दैट इज द नंबर 1 पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अगर मान लेते हैं आईटीसी एलिजिबल नहीं था, कोई ऐसी इंडस्ट्री थी जहां फुल आईटीसी एलिजिबल नहीं था, तो इन दैट केस ये ध्यान में रखना पड़ेगा हमें कि वैल्यूएशन रूल्स के हिसाब से डिपार्टमेंट का ऑब्वियसली लिटिगेशन का पॉइंट यही रहेगा कि आपको बैंक गारंटी का वैल्यू लेना है। बैंक गारंटी अगर आप देखोगे कहीं कहीं पे 4% 5% तक भी जाती है, डिपेंडिंग ऑन द क्रेडिट वर्दिनेस ऑफ कोर्स। बैंक बहुत सारे क्रेडिट अप्रेजल करने के बाद इवैल्यूएट करके फिर बैंक गारंटी देता है, तो इट्स नॉट ऑलवेज द सेम, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट कि मेरे क्रेडिट वर्दिनेस पे बैंक कितना गारंटी देता है, इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू ऑल्सो आइडेंटिफाई, गिवन दैट मैं बैंक से गारंटी ले ही नहीं रहा हूँ। बट अज्यूमिंग कि मुझे पता भी चलेगा कि दैट्स अ रेंज ऑफ 3 to 5%, तो वहां पे 3 to 5% का वैल्यू वो सिमिलर निकालने जाएंगे, तो हमारा यही ऑब्जेक्टिव रहेगा बोलना होगा कि बैंक गारंटी जो देती है वो बैंक के अपने कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स होते हैं, बैंक के अपने आरबीआई के फॉर्मेलिटीज होती हैं, जिसको फुलफिल करने के लिए और बैंक के एडमिनिस्ट्रेटिव जो फॉर्मेलिटीज होती हैं वो बहुत डिफरेंट होती है। अगर आप गारंटी का बात करो, बैंक गारंटी का एक प्रपोर्शन विच इज अ सिग्निफिकेंट पार्ट कवर्स द फैक्ट कि बैंक इसको अपने डॉक्यूमेंटेशन का जो कॉस्ट होता है उससे रिकवर करता है, क्योंकि कॉर्पोरेट गारंटी देने के पहले बैंक बहुत सारे फॉर्मेलिटीज करती है, जिसके लिए उनका पूरा क्रेडिट टीम बैठा रहता है, जिसका कॉस्ट भी वो इंक्लूड करती है 4% 5% को इंक्लूड करने के लिए। बट व्हेन इट कम्स टू 2 डिफरेंट कंपनीज जो आपस में गारंटी देती है, वो उसको दूसरे कंपनी के बारे में सब चीज पता रहता है, तो कोई क्रेडिट वर्दिनेस का या ड्यू डिलिजेंस का कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होता। तो इसलिए बैंक गारंटी और इस कॉर्पोरेट गारंटी को कंपेयर करना एट द सेम लेवल वुड बी डिफिकल्ट। सो वी कैन अडॉप्ट रीजनेबल प्रिंसिपल्स। तो रीजनेबल प्रिंसिपल्स क्या बोलता है कि अगर आज मैं अडॉप्ट कर रहा हूं तो सिंस मेरे पास कोई वैल्यूएशन मैकेनिज्म नहीं है, तो मैं शायद जो आफ्टर 26 अक्टूबर 23 वैल्यूएशन मैकेनिज्म आया है वो मैं शायद अडॉप्ट कर लूं, सेफ मैकेनिज्म वो होगा। या फिर मैं उससे भी ज्यादा अगर अग्रेसिव रहूं, ये तो मेरा सेफ मैकेनिज्म, वो मैं अग्रेसिव रहूं, तो देयर वाज नो प्रॉपर मैकेनिज्म अडॉप्टेबल और रीजनेबल प्रिंसिपल्स लॉ के हिसाब से कोई प्रोड्यूस करना पॉसिबल नहीं था। देयर इज नो मेथड अडॉप्ट पॉसिबल ड्यू टू लैक ऑफ एडिक्वेट मेथडोलॉजी, वैल्यूएशन मेथडोलॉजी। ये गोविंद सरन गंगा सरन का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया हुआ था कि लॉ के 4 पिलर्स होते हैं जिसपे स्टैंड करता है लॉ, उसमें से एक भी मेजर अगर फेल हो जाता है तो उसके ऊपर टैक्सेबिलिटी आ नहीं सकती, जिसमें से एक मेजर था वैल्यूएशन।
जिसमें जैसे एग्जांपल पुराने सर्विस टैक्स रिजीम में ये बोला गया था कि अगर वैल्यूएशन मैकेनिज्म फेल होता है तो इन दैट केस टैक्सेबिलिटी भी फेल हो जाएगा, बिकॉज वन ऑफ द मेजर लिम्स ऑफ टैक्सेशन इज नॉट देयर। जैसे कि इन केस ऑफ सुरेश कुमार बंसल सुप्रीम कोर्ट में ये जजमेंट आया था सर्विस टैक्स के केस में कि अगर आपका प्रॉपर मेथोडोलॉजी अवेलेबल नहीं है फॉर इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विसेज फॉर द पास्ट पीरियड, तो इन दैट केस उसके ऊपर कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं हो सकता। तो सेम लॉजिक हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इफ वी वांट टू अडॉप्ट अ स्लाइटली अग्रेसिव रूट, जहाँ पे हम बोलेंगे कि मेथोडोलॉजी ही नहीं था, विच इज वन ऑफ द मेजर लिम्स एंड द पिलर्स ऑफ वैल्यूएशन, मेजर पिलर्स ऑफ टैक्सेबिलिटी ऑफ एनी ट्रांजैक्शन अंडर जीएसटी, वन ऑफ देम इज वैल्यूएशन। उसके बिना सिंस देयर वाज नो मेथोडोलॉजी अवेलेबल द एंटायर ट्रांजैक्शन फेल्स। इसलिए पुराने पीरियड का अगर लिटिगेट करना है हम लोग को तो इस ग्राउंड पर लिटिगेट किया जा सकता है ट्रांजैक्शन, given that department for every case जहां full ITC available नहीं है, after this clarification they will become more aggressive and try to levy taxes in all the cases and try to adopt valuation mechanism of bank guarantee। 3 से 5% लेंगे, नहीं भी लेते कोई थोड़ा सा अच्छे ऑफिसर्स मिल जाएंगे तो शायद 1% लेंगे, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा अमाउंट है, तो हम इसको लेके आर्ग्यू कर सकते हैं देयर वाज नो वैल्यूएशन मैकेनिज्म। और ये वैल्यूएशन मैकेनिज्म बाद में इसीलिए प्रिस्क्राइब किया गया क्योंकि करंट मैकेनिज्म इज नॉट गुड इनफ and earlier there was no mechanism, so the current mechanism is, or the current mechanism is not good enough to actually prescribe this valuation, so the pillar of valuation fails। तो इसको लेके हम केस को आर्ग्यू कर सकते हैं। obviously the fate of the case is something which has to be seen, as Narayan Bhaiya was also mentioning 17 18 18 19 19 20 का केस हो गया and we all know ये सब सारे केसेस स्क्रूटनी में नहीं आते हैं। and the way we see आज तक जो जीएसटी डेवलप हुआ है, स्क्रूटनी के सारे नोटिस 73 में आते हैं, ऑडिट के सारे नोटिस 74 में आते हैं। ये मैक्सिमम केसेस में सिंस ये स्क्रूटनी का पॉइंट नहीं बनता, स्क्रूटनी में जो चीजें रिटर्न से बहुत क्लियरली अवेलेबल होती है वो स्क्रूटनी में आती है, तो 73 में इन एनी केस कॉर्पोरेट गारंटी कभी कवर हुआ ही नहीं है। प्रैक्टिकली आई हैव नॉट सीन एनी स्क्रूटनी नोटिस जिसके अंदर कॉर्पोरेट गारंटी बोला गया है। दिस इज ऑलवेज बी कवर्ड, हैज बीन कवर्ड इन द केस ऑफ ऑडिट या फिर सर्च एंड सीजर ऑपरेशंस। इन एवरी सच केस ये सारे प्रोसीडिंग 74 में हुई है। इन एनी केस सारे प्रोसीडिंग्स जो डिपार्टमेंट के पुराने पीरियड के होंगे, अकॉर्डिंग टू मी दोज आर स्टिल ओपन। तो 17 18 से कोई भी पीरियड का डिपार्टमेंट चाहे तो डिमांड खड़ा कर सकता है। हैविंग सेड दिस, वी विल ऑब्वियसली अडॉप्ट अ लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स फॉर द पास्ट पीरियड, एटलीस्ट फॉर 17 18 to 19 20, स्टेटिंग दैट कॉर्पोरेट गारंटी इज नॉट समथिंग विच इज हिडन एनीवेयर, बिकॉज ये जो दिया जाता है ये बैंक को दिया जाता है। एवरी कॉर्पोरेट गारंटी विच आई एम गिविंग नीड्स टू बी अपलोडेड ऑन द आरओसी वेबसाइट। इट इज समथिंग विच इज द पब्लिक इंफॉर्मेशन। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं सप्रेस किया हूं। दिस इज समथिंग विच इवन द डिपार्टमेंट और द गवर्नमेंट रियलाइज एट लेटर डेट, जब इन्होंने ये अमेंडमेंट लेके आए 23 से, उसके पहले नहीं लेके आए थे। तो दिस इज समथिंग वेयर इंटेंशन टू एवेड पेमेंट ऑफ टैक्स नहीं है, सप्रेशन इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए हमारा केस एटलीस्ट फॉर 3 years नहीं बनता। तो 3 साल के लिए डिपार्टमेंट 74 में नोटिस देगा। हमारा मेजर आर्ग्यूमेंट का पॉइंट, one of the points would be the limbs of taxation is not there. Second argument point would be this कि हमारा 74 का केस नहीं बनता, नॉन इंटेंशन टू एवेड पेमेंट ऑफ टैक्स था ही नहीं, क्योंकि दिस इज अ पब्लिक इंफॉर्मेशन, दिस इज अवेलेबल विद द गवर्नमेंट। तो ये 3 साल का मैटर वुड बिकम टाइम बार्ड। So at least for the first 3 years, according to me, the case becomes still very strong. The problem lies probably in the intermediate period between after 2019-20, which is 2021, 21-22, उसमें प्रॉब्लम है। और अच्छी बात यह है, लेट्स से फॉर द पास्ट पीरियड अगर टाइम बार्ड नहीं भी हुआ है और आईटीसी फुल्ली एलिजिबल है, तो इन दैट केस हम ये आर्ग्यूमेंट ले सकते हैं कि हमारा जीरो वैल्यू को डिक्लेयर कर दिया जाएगा एंड दैट वैल्यू हैज टू बी टेकन। तो वो वैल्यूएशन मैकेनिज्म हम ले सकते हैं। सो प्रॉब्लम इज, आई वुड फील जहां पे एसएससीज फंस रहे हैं, दैट इज बिटवीन जहां 2021, 21-22, 22-23 एंड पार्शियली 23-24 का जो पीरियड है, जहां पे आईटीसी फुल्ली एलिजिबल नहीं है और वहां पे कोई ट्रांजैक्शन वैल्यू चार्ज नहीं की गई है, वहां पे सी आईटीसी किस केसेस में मुझे पूरा मिलता है। मेरे 2A 3B में आया, मैंने 2A के बेसिस पे लिया आईटीसी, अगर मेरा ब्लॉक नहीं है मैंने ले लिया, दैट इज आईटीसी फुल्ली अवेलेबल। आईटीसी फुल्ली अवेलेबल कब नहीं होता? जब मेरा आउटवर्ड सप्लाई ऐसा है, जहां मेरा कंस्ट्रक्शन सर्विसेज है, रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स का 5%, या फिर रेस्टोरेंट है 5%, या जीटीए है 5%,
जहां मेरा आउटपुट टैक्सेबल है एट अ लोअर रेट, और मुझे ये कंडीशन दिया गया लॉ में कि आप आईटीसी नहीं ले सकते, वहां ये केस हो सकता है। या फिर ऐसा कोई केस है जहां मैं एग्जेम्प्ट सप्लाई करता हूं कोई भी प्रपोर्शन का, तो इन दैट केस मुझे उसके रिस्पेक्ट में आईटीसी नहीं मिलता। हाँ, आउटवर्ड सप्लाई आरसीएम पे है, करेक्ट करेक्ट, तो एग्जेम्प्ट सप्लाई हो गया वो, तो आपको वो वैल्यूएशन मैकेनिज्म लगाना पड़ेगा। करेक्ट, पास पीरियड में अपने नोटिस भी बहुत देखे हैं 40, सही बात है, एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बात है। हाँ, वो अमेंडमेंट भी बाद में आया है, एक्सप्लेनेशन बाद में इंसर्ट हुआ है कि इंटरेस्ट को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम सप्लाई। तो ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स को लेके आज भी इतना लिटिगेशन चल रहा है, एटलीस्ट 3-4 में केसेस खुद ही देख रहा हूँ कि ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स का अमेंडमेंट बाद में आया कि एग्जाम सप्लाई के पर्पस से इसको रिवर्सल नहीं किया जाएगा। किसी ने एक्सपोर्ट किया, एमईआई स्क्रिप्ट्स बेचा, तो इन दैट केस उसके ऊपर आईटीसी रिवर्सल प्रोपोर्शनल नोटिस बहुत सारे आ रहे हैं। एग्जाम सप्लाई उसको ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट को मान लिया गया है, बट फ्रॉम जुलाई 22 ये बोला गया उसकी वजह से रिवर्सल नहीं होगा, बट वो जुलाई 22 से आया अमेंडमेंट। तो हम ये फाइट कर रहे हैं कि जुलाई 22 के पहले भी वो एक्सटेंस एक्सप्लेनेशन है वो उसका रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेबिलिटी होगा। और सप्लायर को आइडेंटिफाई करना होगा। अब सप्लाई, अगर सप्लायर एक ग्रुप कंपनी है, नहीं एमईआई स्क्रिप्ट्स को नहीं एमईआई स्क्रिप्ट्स क्या एग्जाम सप्लाई है, ये एग्जाम ये एक्सप्लेनेशन बाद में इंसर्ट हुआ है जुलाई 22 से कि इसके ऊपर प्रोपोर्शनल रिवर्सल नहीं किया जाएगा। तो हमारा ये पॉइंट है फाइट करने का कि सिंस ये एक्सप्लेनेशन है इसका रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेबिलिटी होगा, ये क्लैरिफिकेटरी अमेंडमेंट है, लेकिन ये भी फाइटिंग पॉइंट है। ये ऐसा नहीं है कि ये पॉइंट एकदम क्रिस्टल क्लियर है, तो इन माय व्यू ट्राइब्यूनल में जरूर जीतेंगे एसएससीज, पक्का जीतेंगे जो लोग इसको लेके फाइट कर रहे हैं, तो वही पॉइंट है। एब्सोल्युटली, एक्सप्लेनेशंस जनरली रेट्रोस्पेक्टिव ही माने जाते हैं। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन एग्जाम सप्लाई वो भी बाद में इंसर्ट हुआ, बट वो भी माना जाएगा कि वो एप्लीकेबल है फ्रॉम 1 जुलाई 17। एग्जाम्प्टेड सप्लाई जिसका है उसमें एक्सपोर्टर्स का रहता है। और हम लोग देखेंगे होल्डिंग कंपनी जिसके पास जो बड़ा ग्रुप है जिसमें 10-12 बिजनेस वर्टिकल्स है, जिसके 10-12 कंपनीज अलग अलग बनी हुई हैं, अब वो होल्डिंग कंपनी को ये जज करना पड़ेगा कि इन सब में से कौन से रेसिपिएंट है जिसको आईटीसी मिलेगा, किसको आईटीसी नहीं मिलेगा। उसके बेसिस पे उसको तो वो तो एक स्टैंडर्ड मेथड अडॉप्ट करेगा कि मैं सबके ऊपर चार्ज करूंगा बेस्ड ऑन कितना कॉर्पोरेट गारंटी दिया, तो ऑब्वियसली एक मेथड उसके लिए तो अडॉप्टेबल रहेगा ही। पुराने में होगा ना, पुराने में सी लिटिगेशन तो आएगा ही, डिपार्टमेंट बोलेगा कि 3 साल जितने साल का है आपका फ्रॉम 17-18 टू 23-24, उसके ऊपर अगर आपका एग्जाम सप्लाई था तो आपने अगर चार्ज नहीं किया तो आपको चार्ज करना चाहिए था आउटपुट पे। अगर अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि अगर आज मैं चार्ज करता हूं उसके ऊपर, तो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि क्या सामने वाले को उसका आईटीसी एलिजिबल है। टू माई माइंड एब्सोल्युटली यस, टू द एक्सटेंट मैं 73 में करता हूं, डिपार्टमेंट 74 में नोटिस देगा, मुझे 74 में उसका पेमेंट नहीं करना। सबसे पहले तो अगर मुझे पेमेंट करना है, इनवॉइस रेज करना है, तो मैं आज रेज करूंगा
विथ इंटरेस्ट रेज करूंगा अगर मुझे कंप्लायंस करना है लॉ का। सप्लायर के ऊपर से लिटिगेशन खत्म हो जाएगा टू द एक्सटेंट ऑफ टैक्स, बट पेनल्टी एप्लीकेबल हो जाएगा। शुरू के 3 साल में ये फायदा है कि 73 में अगर मैं लेके जाता हूं केस तो इंटरेस्ट पेनल्टी माफ हो जाएगा। अगर मैं उसको 74 में जैसे ही पेमेंट कर देता हूं तो इंटरेस्ट पेनल्टी भी लगेगा, आउटपुट भी पेमेंट करना पड़ेगा और आईटीसी नहीं मिलेगा क्योंकि वो ब्लॉक क्रेडिट है, क्योंकि 74 में अगर मैं चार्ज करता हूं तो रेसिपिएंट को आईटीसी नहीं मिलेगा। तो मेरा काम है अगर मैं पे करूं भी तो भी 73 में करूं। हाँ, और शुरू के 3 साल में पे किया भी तो देयर इज नो प्रॉब्लम, क्योंकि आज मैं चार्ज करूंगा और उसका आईटीसी ले लूंगा। वो तो 74 में नोटिस देगा मुझे, मैं उसे 73 में कर दूंगा। हाँ, नहीं, अगर मैं सुओ मोटो अपने आप पेमेंट कर रहा हूं तो मुझे आज के रेट पे अगर इनवॉइस रेज करना है, मैं बैकडेटेड इनवॉइस रेज कर रहा हूं तो नॉर्मली करंट डेटेड इनवॉइस रेज कर रहा हूं, करंट डेट पे इनवॉइस रेज कर रहा हूं, तो इन एनी केस 73 74 तो आया ही नहीं, वो तो करंट डेट का इनवॉइस हुआ। तो इन एनी केस नॉन फ्रॉड केस है क्योंकि मैं अपने आप सुओ मोटो कर रहा हूं विदाउट डिपार्टमेंट अट्रैक्टिंग एनी अटेंशन, क्योंकि लॉ में अमेंडमेंट आया, मैंने लॉ का अमेंडमेंट देखते हुए आज इनवॉइस रेज कर दिया। अगेन क्वेश्चन ये उठता है इंटरेस्ट का। शुरू के 3 साल में हम ये बात बोल सकते हैं कि वो उस पीरियड की लाइबिलिटी थी तो इंटरेस्ट नहीं आएगी, तो बट उसके बाद की पीरियड की लाइबिलिटी तो आएगी ना इंटरेस्ट की। करेक्ट। अभी तक पॉइंट इज ये इंटरेस्ट पेनल्टी का वेवर जब तक अभी प्रेस रिलीज है, जब तक वो वर्बिटिम नहीं पढ़ते ना तब तक एक्चुअली हम जब बात करें वो सारा 128 है, जब तक नहीं आता साथ में हाथ में नहीं आता तब तक कुछ थोड़ा स्पेक्यूलेशन हो जाएगा, तो कुछ डिसीजन लेना नहीं चाहिए अपने को। कुछ नहीं, अभी अब 1 हफ्ते का वेट करना है सिर्फ। हाँ, अभी बात यह है कि 73 से अभी पहले जब वर्बिटिम नहीं, ये एक्चुअली अभी नोटिस आएगा, उसके बिना भी हो सकता है, नहीं हो सकता। जब तक 128 नहीं आता बोलना बहुत मुश्किल है। उसमें क्या लिखा रहता है कि इन एवरी केस अदर देन 74 या फिर ओनली व्हेन नोटिस इज इशूड अंडर 73 वेयर नो नोटिस इज इशूड सुओ मोटो इज पेमेंट इज बीइंग मेड। तो क्या क्या केसेस कवर्ड है वो हम लोग जानते ही नहीं है ना। नहीं नहीं सर आता है। सबका विश्वास स्कीम जो आया था ना वो वैसे ही आया था। वो तो एक लाइन लिख के छोड़ देगा प्रोवाइजो में, हर लाइन में, हर सब सेक्शन में प्रोवाइजो। इंटरेस्ट पेनल्टी कुछ पेमेंट करेंगे अगर आप तो रिफंड नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं होगा उनका। हम लोग आज तक जीएसटी लॉ से, पुराने लॉ से एक ही चीज सीखे हैं, हमेशा वेवर उनके लिए ही होता है जो लोग लिटिगेट करते हैं। जो आदमी पीस बाय करता है उसको कभी भी कम पैसा नहीं देना पड़ता, हमेशा पैसा उसी को ज्यादा, हमेशा कम उसी को देना पड़ता है जो आदमी नॉन कंप्लायंट है। जीएसटी में नॉन कंप्लायंट या सर्विस टैक्स में नॉन कंप्लायंट वाले ही पैसा कम देते हैं। हाँ, सब में यही है। अब वैट में देखिए ना 15% का लाइबिलिटी दे के लोग खत्म किए हैं। एक्चुअल लाइबिलिटी बुक्स में, एक्चुअल लाइबिलिटी में 15% देके खत्म करूंगा विदाउट इंटरेस्ट पेनल्टी। सबका विश्वास में भी आपका जब स्कीम आया था सेम चीज था। अभी भी आपका जो 73 का केसेस है, जितने मेरे डिफॉल्ट है, मैं सारा पेमेंट करके खत्म कर सकता हूँ केसेस। 15% नहीं, मतलब परसेंटेज तो बताएं। खैर जीएसटी में वो लोग ऐसा नहीं करेंगे कि आप इतना अमाउंट कम पे कर, टैक्स का वेवर नहीं देंगे वो लोग, क्योंकि अभी बजट में आ जाएगा। 128 सेक्शन इंसर्ट होने वाला है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ रहेगा वर्बिटिम। हाँ, उसमें सारा सिचुएशन कवर करेंगे वो लोग।
होपफुली सारा सिचुएशन कवर करेंगे। आपका नोटिस आया नहीं तो क्या होगा, नोटिस आया तो क्या होगा, अपील, नोटिस पेंडिंग है तो क्या होगा, ऑर्डर आ गया तो क्या होगा, अपील पेंडिंग है तो क्या होगा। हर केस कवर्ड होता है, तो लेट्स सी क्या आएगा उसमें। तो हाँ, मैम जनरली तो ये डिसाइडेड रहता है, क्योंकि अगर कोई बैंक, अगर तो फिर इक्वल मान सकते हैं, फिर तो इक्वल ही मानना पड़ेगा। सी मैम, आई वुड प्रेफर कि आफ्टर दिस क्लैरिफिकेशन एटलीस्ट वैल्यू डिसाइड कर ले। नहीं किया हुआ है फिर भी, तो लास्ट रिकोर्स यही है कि आपको इक्वल लेना पड़ेगा। एक को गारंटर बहुत बड़ा NBFC है, एक को गारंटर छोटा है, ठीक है, दोनों मिलकर 100 करोड़ रुपए लाए तो को गारंटर इस तरीके से पेपर बनाया, क्या क्या है कि 80-20 है या क्या है। अब वो छोटा वाला NBFC का नेटवर्क ही है 20 करोड़, तो उसको ये बोलना कि वो 50 करोड़ से गारंटी कर दिया, वो तो कहीं दैट्स द होल पॉइंट कि आज के डेट पे मतलब एक्चुअली लॉजिक के ऊपर कोई जाएगा नहीं, इट इज ओनली द वैल्यूएशन मैकेनिज्म। जीएसटी आई मीन लॉजिक के ऊपर रन करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। बेस्ड पॉइंट है कि एवरीथिंग रन्स एज ऑफ नाउ व्हाट इज रिटन वर्बेटिम इन लॉ। तो वर्बेटिम में सिर्फ यही लिखा हुआ है कि आपका जितना वैल्यू का जितना प्रपोर्शन है उतना प्रपोर्शन पे दिया जाएगा। तो जहां प्रपोर्शन नहीं है, ओनली मेथड इज कि आप इक्वल कर सकते हो, और तो कोई मेथड होगा नहीं, बिकॉज दैट इज द सेफेस्ट रूट एप्लीकेबल। तो मैम प्राइमरी गारंटर जो है, इफ ही इज गिविंग द गारंटी, in that in case the primary guarantor should be ideally charging, secondary guarantor would not be charging. Secondary guarantor only comes where the primary guarantor is not able to fulfill the responsibility. जनरली बैंक के पास में लिखा हुआ रहता है मैम, अग्रीमेंट जो होता है मैं देखा हूं, अग्रीमेंट में बैंक के पास लिखा रहता है कि हु विल द बैंक अप्रोच फर्स्ट। तो जो प्राइमरी गारंटर होता है उसी को अप्रोच करते हैं वो लोग। नेक्स्ट हुआ कि अगर हम लोग पर्सनल गारंटी की बात करें, पर्सनल गारंटी आरबीआई का ये मैंडेट है एज पर आरबीआई सर्कुलर जो आपकी स्क्रीन पे है, जिसमें ये बोला गया है कि नो कंसिडरेशन बाय वे ऑफ कमीशन, ब्रोकरेज और एनी अदर फॉर्म कैन बी पेड टू द डायरेक्टर बाय एनी कंपनी इन ल्यू ऑफ एनी पर्सनल गारंटी गिवन बाय डायरेक्टर टू द बैंक फॉर बोरिंग क्रेडिट लिमिट्स। And since open market value is deemed to be zero in such cases, taxable value will be deemed to be zero. इसलिए डायरेक्टर कभी कंपनी को कुछ भी चार्ज नहीं करेगा। ओनली इन एक्सेप्शनल सिचुएशन कि कोई एक्स डायरेक्टर ने गारंटी, मतलब डायरेक्टर था उसने गारंटी दी, अब वो डायरेक्टर नहीं रहा फिर भी वो गारंटी दे के रखा है, तो इन दैट केस क्वेश्चन आता है कि उसके ऊपर जो एक्चुअल रेम्यूनरेशन उसको पे किया जा रहा है उसके बेसिस पे उसको चार्ज किया जाए। नहीं, sitting fees in any case is not relevant to personal guarantee. Sitting fees is only for that particular case. तो अभी गारंटी को लेकर कोई क्वेश्चन कुछ भी? करेक्ट, करेक्ट, बस बस 26 अक्टूबर 23 का जो लॉ है उसको अमेंड, थोड़ा सा अमेंड नहीं, 26 अक्टूबर 23, पहले तो 26 अक्टूबर 23 में सब रूल इंसर्ट हुआ, अब उस सब रूल को फ्रॉम 26 अक्टूबर अमेंड किया गया। नहीं, करेक्ट,
बिल्कुल। तो वही क्वेश्चन है कि हम लोग बोलेंगे वैल्यूएशन रूल फेल्स। सही बात है। ठीक है। नारायण, और कुछ नारायण जी कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है जो हम लोग कवर नहीं किए, कोई सिचुएशन ऐसा कुछ? नहीं, आपने एक्चुअली बहुत सारे सिचुएशंस उस समय शुरू में बोले थे, मैंने सोचा था कि सारे बोल दूं मैं, मुझे लगता है कि मैंने सारे सिचुएशंस बोल दिए। हाँ, मैं रिकमेंडेशन डील कर देता हूँ, फिर क्वेश्चन दे देता हूँ। तो अपने अभी फिलहाल जो कौन कौन से रिकमेंडेशंस आई थिंक प्रेफरेबल रहेंगे, बिकॉज सारे तो अपने कवर नहीं कर पाएंगे, तो अपने ओके। एक तो ये पहला सबसे मेजर रिकमेंडेशन आया है कि अगर मेरा ट्राइब्यूनल नहीं बना हुआ है, तो अगर मेरे अगेंस्ट में अपील का ऑर्डर आ चुका है, तो बहुत जगह डिपार्टमेंट पॉसिबली रिकवर करता है मेरे से, जिसमें मैं बोलता हूं कि मैं वेट करना चाहता हूं ट्राइब्यूनल बनने का, क्योंकि मुझे अपील फाइल करना है। तो मैं क्या करूं इन सच केसेस? ये मेजर इशू है, काफी जगह रिकवरी हुई भी है, लोग डर से पेमेंट किए भी हैं, पूरा अमाउंट पे करके बोलते हैं हम जाएंगे अपील में। एनीवेज, तो इसमें काफी जगह हाईकोर्ट मूव करना पड़ा लोगों को। फिर हाईकोर्ट ने जनरली ये डायरेक्शन दिया कि आप प्री डिपॉजिट का अमाउंट पे करो और उसके बाद आपको स्टे दिया जाए। बट अब इसके लिए हर आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है कि हर रिकवरी को लेकर वो हर छोटे अमाउंट को लेकर भी हाईकोर्ट मूव करे। तो इसके लिए लॉ में अमेंडमेंट का जरूरत था, या क्लैरिफिकेशन का रादर आई वुड से जरूरत था। तो इसमें यह बोला गया है कि अगर आप 3 काम करो, तो इन दैट केस आपको स्टे ग्रांट कर दिया जाएगा। पहला, आप जितना भी अमाउंट है हाई कोर्ट में आप पिटिशन फाइल करोगे, तो कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा? 10% प्लस 20% था पहले, जो अब रिवाइज होके 10% प्लस 10% हो गया। तो हाई कोर्ट का मैं अगर अमाउंट 10% फर्दर पे करूं, तो इन दैट केस मुझे उसके ऊपर स्टे मिल जाएगा, राइट? तो अब क्वेश्चन उठता है कि मैं कैसे पे करूं इसको, क्योंकि शायद मैं जब फाइल करने जाऊंगा उस समय मुझे प्री डिपॉजिट दोबारा देने बोला जाएगा। तो ये बोला है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप DRC 03 नॉर्मली जैसे फाइल करते हो वैसे आप फाइल करो, उसके थ्रू आप पेमेंट करो, 10% आप पेमेंट करो, ऑफिसर को एक अंडरटेकिंग फाइल करो, आप ऑफिसर को अंडरटेकिंग आप फाइल करो कि हम इसके अगेंस्ट में अपील जाना चाहते हैं, ये मेरा प्री डिपॉजिट का चालान है, काइंडली आप मेरा रिकवरी रोक दो। और साथ साथ जैसे ही ट्राइब्यूनल बने विद इन द प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट, 3 महीना प्लस 3 महीना दिया गया है। 3 महीना प्लस 3 महीना मतलब 3 महीना फाइल करने के लिए टाइम है। अगर मैं अगर लेट्स से कोई सफिशिएंट रीजन में दिखा सकूं, तो 3 महीना और मुझे मिल सकता है फाइल करने के लिए। मैं ये फाइल कर सकता हूं अपील बिफोर द ट्राइब्यूनल। और अब सवाल उठता है कि बहुत लोग ये बोलते हैं अगर मैंने DRC दे दिया, तो ऑफिसर मुझे एक ही बात बोलता है, ये कैसे मान लूं कि इसी के अगेंस्ट DRC है, ये नहीं, पीरियड लिखा भी रहे तो भी हम लोग ऑफिसर बोलता है कि ये तो जनरल DRC है, आपने जो डिमांड ऑनलाइन क्रिएटेड है उसके अगेंस्ट तो आपने DRC किया नहीं है, क्योंकि मैं जो डिमांड ऑनलाइन क्रिएटेड है उसके अगेंस्ट पार्शियल पेमेंट नहीं कर सकता। अगर मेरा डिमांड लेट्स से 1 करोड़ का है, मैं उसके अगेंस्ट ऐसा नहीं है कि मैं चाहूं तो 10 लाख रुपए पेमेंट कर दूं, मुझे पेमेंट तो फुल करना पड़ता है। और मैं अगर फुल पेमेंट कर दूं तो फिर मेरा प्री डिपॉजिट का वैल्यू नहीं रहा, तो इसलिए मुझे प्री डिपॉजिट तो 10 लाख का देना पड़ता है, लेकिन वो 10 लाख वो 1 करोड़ के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं होता। तो इसका क्या उपाय निकले? तो इसीलिए इन्होंने एक नया फॉर्म इंट्रोड्यूस करने का प्लान किया है, जिसका अभी तक फंक्शनैलिटी पोर्टल पे आना बाकी है, विच इज DRC 03A। DRC 03A का क्या काम है कि जितना भी डिमांड रहेगा उसके अगेंस्ट कोई ओपन DRC है। DRC 03 इज ऑल्सो लाइक मैं चलान के थ्रू पेमेंट करता हूं, फिर उसके थ्रू DRC करता हूं, बट दैट DRC टिल इट इज सेट ऑफ अगेंस्ट द आउटस्टैंडिंग डिमांड, वो DRC भी ओपन है और मेरा डिमांड भी ओपन है। तो मुझे दोनों को मैच करने के लिए, सेट ऑफ करने के लिए एक दूसरे के अगेंस्ट
एक फॉर्म चाहिए विच इज कॉल्ड एज DRC03A। ये फंक्शनैलिटी एनेबल हो जाएगा। उसके बाद जब ये फॉर्म फाइल किया जाएगा तो जो 1 करोड़ का डिमांड है उसके अगेंस्ट वो 10 लाख का प्री डिपॉजिट को एडजस्ट कर दिया जाएगा और विदाउट एनी एक्स्ट्रा पेमेंट हम सीधा अपील फाइल कर सकते हैं एट दैट टाइम। इसको लेकर ये क्लैरिफिकेशन आया, राइट। तो टिल DRC03A बिकम फंक्शनल हम लोग ऑफिसर को मियरली इंटीमेट करें DRC03 दे के, दैट इज सफिशिएंट। DRC03A आने के बाद हमारा काम रहेगा कि हम उसको सेट ऑफ करने के बाद ऑफिसर को दोबारा इंटीमेट करें कि हमने ये सेट ऑफ कर दिया, राइट। अब DRC03A का सिर्फ ये पर्पस नहीं है, इसका और भी बहुत सारे पर्पसेस हैं। अभी बहुत सारे केसेस में ऐसे होते हैं कि हमारे पास एक स्क्रूटनी का नोटिस आया या हमारे पास DRC01A आया हुआ है या DRC01 आया हुआ है, यानी शो कॉज आया हुआ है। अब बहुत केसेस में एसएससीज क्या करते हैं, रादर देन मेकिंग पेमेंट अगेंस्ट, क्योंकि उसमें ड्रॉप डाउन आता है कि मैं किसके अगेंस्ट कितना पेमेंट कर रहा हूं, रादर देन सिलेक्टिंग कि मैं किसके अगेंस्ट कितना पेमेंट कर रहा हूं, एसएससीज क्या करते हैं, वॉलंटरी ऑप्शन सिलेक्ट करके DRC03 फाइल कर देते हैं। वहां पे भी आउटस्टैंडिंग डिमांड के अगेंस्ट वो सेट ऑफ करने का कोई ऑप्शन नहीं होता। फिर पोर्टल पे काफी कुछ कंप्लेन करके ऑफिसर्स अपना इंटरनल कुछ सिस्टम अडॉप्ट करते हैं, उसके बाद वो जाके सेट ऑफ कर पाते हैं। इट इज अ ह्यूज प्रोसेस, इट इज नॉट अ सिंपल प्रोसेस। इसके लिए भी DRC03A का रोल रहेगा, जहां पे इन एवरी आउटस्टैंडिंग डिमांड DRC03 के अगेंस्ट DRC03A हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर सेटिंग ऑफ एनी डिमांड। इंटरेस्टिंगली ऑफिसर्स DRC04 फॉर्म यूज नहीं करते हैं, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म जो अब ऑनलाइन होने वाला है। अभी तक बहुत ऑफिसर्स इसको फिजिकली इशू करते थे। DRC04 फॉर्म क्या होता है कि जो मैंने पेमेंट किया उसको उनको एक्नॉलेज करना है। अब मैंने DRC03 आज फाइल किया, आज मेरे अगेंस्ट कोई डिमांड है, मैंने उसके अगेंस्ट यूज कर लिया। 3 साल बाद कोई दूसरा डिमांड आया, मैंने उसके अगेंस्ट भी दिखा दिया, देखिए मैंने DRC03 फाइल करके रखा है। कोई भी डिमांड आए मैं उसके अगेंस्ट दिखा दूं कि मैंने इस पीरियड का तो ऑलरेडी DRC03 फाइल करके रखा है। अलग अलग ऑफिसर्स अलग अलग डिमांड देते हैं। तो आइडियली ये ऑफिसर्स का वीकनेस है कि वो एक्नॉलेजमेंट इशू नहीं करते कि किस डिमांड के अगेंस्ट वो सेट ऑफ हो रहा है। इस वजह से बहुत सारे ओपन DRC03 पोर्टल पे दिखते रहते हैं हमें, और आउटस्टैंडिंग डिमांड भी दिखते रहते हैं। इसलिए वो एक्नॉलेज जब कर देंगे कि वो इस डिमांड के अगेंस्ट सेट ऑफ हो गया, तो दोबारा किसी और डिमांड के अगेंस्ट वो सेट ऑफ नहीं होगा। इसलिए DRC04 फॉर्म को भी प्रपोज किया गया है कि वो भी ऑनलाइन ला दिया जाएगा, राइट। एक ही सिचुएशन में बस DRC03A नहीं होगा, जब DRC05 इशू हो चुका। वो क्या होता है, DRC05 होता है कि अगर जितना भी डिमांड ऑफिसर ने शो कॉज में इशू किया, मैंने उसको एज इट इज पे कर दिया। ऑफिसर को DRC05 इशू करना है, ना कि ऑर्डर। वो ऑर्डर इशू नहीं करेगा, शो कॉज के अगेंस्ट वो ऑर्डर इशू नहीं करेगा। वो सिर्फ DRC05 इशू करेगा कि प्रोसीडिंग्स में ड्रॉप हो गया, तो आपको ड्रॉप प्रोसीडिंग्स ऑनलाइन दिखता है। तो जहां पे ड्रॉप प्रोसीडिंग्स हो चुका है, मैं उसके अगेंस्ट पेमेंट कर चुका हूं, वो सेट ऑफ होके उस सेट ऑफ होके ड्रॉप हुआ है, तो DRC03A यूज करने का कोई क्वेश्चन नहीं उठता, क्योंकि वो ऑलरेडी ऑफिसर ने उसको यूज कर लिया। दैट इज द ओनली एक्सेप्शन, राइट। तो इसको लेकर क्वेश्चन DRC03A रिकवरी। और कुछ रूल्स नोटिफाई हुए हैं। अपील बिफोर ट्राइब्यूनल, प्रैक्टिकली ये आ गया कि एंटायर अपील्स बिफोर द ट्राइब्यूनल वुड बी फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिकली। फिजिकल अपील नहीं होगा, एक्सेप्ट वेयर रजिस्ट्रार पासेस अ जनरल ऑर्डर या स्पेशल ऑर्डर। जहां पे फिजिकल अपील के ऑर्डर्स आए हुए हैं, कोई ऐसा एक्सेप्शनल सिचुएशन है जहां पे वो बोलेंगे कि इसमें फिजिकल अपील फाइल हो सकता है, बट एक्सेप्ट दैट ऑल अपील्स हैव टू बी फाइल्ड ऑनलाइन। ऑल मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन, यानी डिपार्टमेंट का अपील हुआ उसके अगेंस्ट हम क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे, दैट हैज टू बी फाइल्ड ऑनलाइन। अगेन उसके लिए हमें फिजिकल ऑर्डर का कॉपी भी फाइल करने की जरूरत नहीं है, जिसमें हम साइंड ऑर्डर कॉपी फाइल करते थे अभी तक ट्राइब्यूनल में, वो भी फाइल करने की जरूरत नहीं है। एक्सेप्ट वेयर अगर अपील ऑनलाइन फाइल नहीं है तो हमें जाके सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर यहां पे फाइल करना पड़ेगा। वंस अगेन जो भी ट्राइब्यूनल की फीस होगी ये भी ऑनलाइन पेमेंट होगी, मिनिमम 5,000 मैक्सिमम 25,000, फॉर एवरी 1,01,000 रुपीज का अमाउंट दिया जाएगा। और अपील फाइल होने के बाद कभी भी विड्रॉ हो सकता है, बट अगर एक्नॉलेज हो गया तो विड्रॉ सिर्फ ट्राइब्यूनल के परमिशन से होगा। और जैसे मैंने बताया DRC04 वुड बी ऑनलाइन। तो एंड वी आर ऑल्सो हियरिंग, ये अगेन मर्मर्स है, बट वी आर टॉकिंग इन अ क्लोज ग्रुप, बट ये मर्मर्स है, व्हाट वी आर हियरिंग इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ ट्राइब्यूनल माइट बी ऑनलाइन।
This is something which we are hearing, which I don't know whether it's, I mean, obviously it's a big thing because to a great extent, people can practice all India. तो जो अच्छे प्रैक्टिशनर्स होंगे उनके पास केसेस ऑल इंडिया के आएंगे, वो अलग अलग ट्राइब्यूनल्स के मैटर्स लेके अपीयर कर सकते हैं ऑल इंडिया. एट द सेम टाइम बहुत बचेगा, बिकॉज ट्रस्ट मी, जो लोग ट्राइब्यूनल प्रैक्टिस करते हैं, आप लोग अगर प्रैक्टिकली देखे होंगे, जो लोग लॉयर्स काफी हद तक प्रैक्टिस करते हैं, सीएस अभी भी ट्राइब्यूनल्स में कम है. तो टू अ ग्रेट एक्सटेंट सीएस के इतने कमिटमेंट्स होते हैं इतने अलग अलग जगह पे, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है कि सुबह से शाम तक ट्राइब्यूनल में बैठे. आज के डेट में मैक्सिमम जो लोग ट्राइब्यूनल प्रैक्टिस करते हैं, मोस्ट ऑफ दोज पीपल यूजुअली आर सिटिंग इन ट्राइब्यूनल फॉर द होल डे, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास दिन के 5 केसेस हैं, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक उनको ट्राइब्यूनल बैठना है जब तक केसेस सुने जा रहे हैं, और 5 बजे के बाद वो सिर्फ कॉन्फ्रेंसेज लेते हैं और उसके बाद ट्राइब्यूनल के नए नए केसेस लेते हैं और ड्राफ्टिंग करते हैं. दैट इज देयर यूजुअल लाइफ, as a result of which it is difficult for CAs to venture into it, because CAs के commitments इतने होते हैं कि वो every day बैठ नहीं सकते ट्राइब्यूनल में. So in a way, according to me, it would be a great opportunity for chartered accountants if it becomes online, because chartered accountants अगर फुल डे इन्वॉल्व नहीं रहते, अगर अपने ऑफिस से बैठ के अगर 2-3 केस भी करते हैं, उनके दिन का 1 घंटा इन्वॉल्व होता है वर्सेस दिन का पूरा पूरा दिन इन्वॉल्व होता है, तो और फुल ऑल इंडिया का प्रैक्टिस कर सकते हैं. गिवन दैट नारायण जी वाज आल्सो हाईलाइटिंग, अभी तक जो जीएसटी में केसेस आए हैं, those are all cases which are reconciliation oriented. इससे ये मैच नहीं करा, उससे वो मैच नहीं करा, तो लॉयर्स के लिए वो रिकंसिलिएशन को समझना, समझाना, सिस्टम को समझना would be difficult. So according to me, CAs will definitely be one up, since these are fact oriented cases. So according to me, CAs will have a much larger opportunity in GST as compared to what we had seen during the service tax days. And after it becomes online, according to me, it will be all the more fruitful for CAs, and would always will curb corruption also to a great extent. So according to me, tribunals would be it would be a wonderful opportunity if it becomes online. So let's see what happens. I mean, these are only speculations. So, but from what we are seeing, if every appeal is being filed online, I'm not expecting the department to take printout of every case during physical appeals and presenting it to every person during the hearing. So we are expecting that maybe the whole process they want to take it online. So that's why I thought this would be applicable. Also, one more thing which is relevant is interest on amount lying in electronic cash ledger. बहुत लोग अपना रिटर्न फाइल नहीं कर पाते ऑन 20th, लेकिन वो क्या करते हैं, कैश लेजर में पैसा डाल के छोड़ देते हैं. जीएसटी के पहले अगर आप देखोगे तो सबके पास ये ऑप्शन था कि वो पेमेंट कर दे टैक्सेस का, सर्विस टैक्स में रिटर्न लेट फाइल करे तो लेट फीस देना पड़ेगा. जीएसटी में मुझे इंटरेस्ट देना पड़ता है, विच इज इलॉजिकल, इवन दो आई हैव गॉट सफिशिएंट मनी एंड आई हैव ऑलरेडी डिपॉजिटेड टू द गवर्नमेंट किटी. तो यहाँ पे दिस इज अ वेलकम अमेंडमेंट. अगेन केस लॉज इसके आए हुए थे, कुछ कुछ फेवरेबल, कुछ कुछ अगेंस्ट, बट अब ये रूल अमेंडमेंट आने वाला है जिसमें ये बात बोला जाएगा. यस, सी इन एनी केस क्रेडिट लेजर में जो अमाउंट है आप अपना रिटर्न लेट फाइल करते हो, 100 रुपए अगर आपका ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी है, 90 रुपीज आप क्रेडिट से करो तो आपका इन एनी केस इंटरेस्ट 10 पे लगता था. अब ये क्वेश्चन, अब ये आया कि 10 रुपए अगर आप कैश लेजर में डिपॉजिट करके रख रहे हो तो आपका इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं. करेक्ट. हाँ, तो ओके नारायण जी, आप 21 तारीख से अगर मैंने किया तो 21 तारीख से इंटरेस्ट अगेन वर्बिटिम देखते हैं लॉ का, बिकॉज आई हैड नॉट नोटिस दिस पार्ट. ओके, नहीं नहीं वो सही बात है. तो वील हैव टू सी, अगर 21 तारीख को जमा हुआ तो इंटरेस्ट एक दिन का लगेगा कि पूरे 10 दिन का लगेगा. इंटरेस्टिंग. हाँ, मतलब जिस दिन सेट ऑफ हुआ है अपना. एक्चुअली उनका ऑब्जेक्टिव ये था
कि मुझे ये प्रैक्टिस डिस्करेज नहीं करना, क्योंकि सबको पता है कि लेट फीस लगता है एक दिन का, सबको पता है कि लेट फीस एक दिन का कितना है, 50 रुपीज पर डे होगा। अब लोग डिस्करेज होके 3B मतलब लेट फाइल करना स्टार्ट कर दिए और पैसा कैश लेजर में छोड़ दिए। उनको डिस्करेज करने के लिए उन्होंने ये बना दिया कि आपको कैश लेजर में डालना है तो आप ड्यू डेट के अंदर डाल के रख दो, जिससे उनके गवर्नमेंट को प्लानिंग करनी है कि उनके पास पैसा इतने दिन में आ जाए। इट इज लाइक हम लोग को अगर अपने क्लाइंट से ये फिक्स मालूम पड़ जाए कि हमारे ऑफिस के खर्चे मीट होने के लिए हमारे पास एक फिक्स डेट पे क्लाइंट फीस दे देंगे, so it will be easy for us to plan our expenses. For them also it's easy to plan. That is the entire idea why they have done this. उनको एक मंथली रेवेन्यू चाहिए जिसके अगेंस्ट वो मंथली एक्सपेंडिचर कर सके, 1.5 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ जो भी मिलता है उनको, लेकिन उनको पता है कि ये मेरा इनकम है। सही बात है, बट आई वुड से अगेन दिस इज अ क्लैरिफिकेटरी अमेंडमेंट। एब्सोल्युटली, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब ये अगेन आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट ये गुजरात में आया, फिर आंध्र प्रदेश में आया, पौंडीचेरी में था, कोई कोई स्टेट्स में पायलट प्रोजेक्ट इन्होंने लाया। अब यहाँ पे 3 प्रकार के एसएससी हैं जो रजिस्ट्रेशन लेते हैं। पहले एसएससी जो रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया, जिन्होंने आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन उन्होंने ऑनलाइन किया, ओटीपी दिया, उनके पास लिंक आया, उन्होंने उस लिंक को क्लिक किया, आधार ऑथेंटिकेशन उनका हो गया, उनका कोई रिस्क पैरामीटर्स ब्रीच नहीं हुआ, तो इन दैट केस मेरा एंटायर प्रोसेस इज ऑनलाइन। ये फर्स्ट टाइप के एसएससी हैं जो मैक्सिमम कवरेज में आएंगे। सेकेंड टाइप के एसएससी ऐसे हैं जो रजिस्ट्रेशन अप्लाई किए, आधार ऑथेंटिकेशन करने गए, पर प्रॉब्लम ये हुआ कि उनका डीजीआरएम यानी कि जो रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, जो उनकी टीम है, उन्होंने फ्लैग किया कि ये एसएससीज मुझे लगता है जीएसटी के लायक नहीं है, इनका आप फिजिकल वेरिफिकेशन करो। तो वो क्या करेंगे, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन वो कराना होगा, कुछ कुछ फैसिलिटेशन सेंटर्स बनेंगे, वहां पे जाके उनको ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा, जाके फिजिकली अपीयर होना पड़ेगा, अपना फोटो खिंचवाना पड़ेगा, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो अप्लाई किए थे हम लोग ने वो सारे दिखाने पड़ेंगे। तो ये सारा काम करना पड़ेगा उन सबको। थर्ड कैटेगरी ऑफ एसएससी हैं जो बोलते हैं मैं आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करूंगा। उनको ये बोल दिया कि फिर रिस्क पैरामीटर का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता, आपको इन एवरी केस फैसिलिटेशन सेंटर जाना है, अपना फोटोग्राफ खिंचवाना है, अपना वेरिफिकेशन करवाना है, और फिजिकल डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, तब जाके आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा। अब थिंक अबाउट एसएससी जो एक नया बिजनेस कर रहे हैं, मैं कॉर्पोरेट हूं, मैं नया बिजनेस कर रहा हूं, ऑल इंडिया का मुझे रजिस्ट्रेशन लेना है, मैं एक जगह से ले रहा हूं, 30 स्टेट का मुझे एक साथ रजिस्ट्रेशन लेना है, मैं एक नया कॉर्पोरेट हूं। अब फिजिकली लेट्स से आधार ऑथेंटिकेशन कर दिया, वो एक्सेप्टेबल हो गया तो बहुत अच्छी बात है। वो अगर एक्सेप्टेबल नहीं होता, या फिर मुझे आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करना, फॉरेन के डायरेक्टर्स हैं, नहीं, अगेन उसमें दिया हुआ है फॉर द रेलिवेंट पर्संस जो ऑथराइज सिग्नेटरी अपॉइंट करने के लिए एलिजिबल होंगे। जो 26D जो आपका 25 रूल 25(6)D के अंदर में दिए गए हैं, जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर, कर्ता, होल टाइम डायरेक्टर्स, या ट्रस्टीज जो मैनेजिंग ट्रस्टीज हैं कोई ट्रस्ट के, जो मैनेजिंग पार्टनर्स हैं, उन सबको करना जरूरी है। बट फिर भी मैं मैनेजिंग पार्टनर हूं, मैं बॉम्बे बेस्ड हूं, मैं कैलकाटा बेस्ड हूं, मुझे अगर ऑल इंडिया जाके अगर रजिस्ट्रेशन लेना है, मुझे हर जगह जाके अपना बायोमेट्रिक देना है, मैं ट्रैवल करूंगा खाली जीएसटी के लिए ऑल इंडिया 30 जगह, इट बेसिकली इज इम्प्रैक्टिकल सिचुएशन। मेरे ही क्लाइंट का रिसेंट में फोन आया, सर हम लोग को एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करना है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का रजिस्ट्रेशन चाहिए, मुझे डिपार्टमेंट बोलता है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करना है गुजरात में, मैं क्या करूं? बोला सर एक काम करो, आप आईजीएसटी चार्ज करो, आप छोड़ दो, डायरेक्टर नहीं जा सकते। बोले डायरेक्टर को जाने का टाइम नहीं है, इतना पॉसिबल नहीं है, डायरेक्टर इतने बिजी है, वो कहाँ से गुजरात में खाली अंगूठा लगाने थोड़ी जाएंगे अपना, तो वो इम्पॉसिबल चीज है। तो मैं बोला ठीक है, फिर आप यहाँ से जीएसटी चार्ज करो, यहाँ से सारा काम करो, क्या करोगे? वहां पे मत लो रजिस्ट्रेशन, जो आईटीसी थोड़ा बहुत जाएगा वो जाएगा। डायरेक्टर बोलता है 2 लाख का आईटीसी मिस होगा, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं डिपार्टमेंट में हो जाऊँ। मतलब कभी कभी होता है कि लोकल कुछ कुछ सप्लाईज लिए जाते हैं, वो लोग बोलते हैं हम लोग आईजीएसटी बिलिंग नहीं करेंगे, इसलिए अपने सोचते हैं कि वहां रजिस्ट्रेशन ले लें।
सही बात है। हाँ, तो उसके लिए भी जरूरत है अभी तो। नहीं, मान लीजिए कि आपका वहां पे कोई लोकल इवेंट था, इवेंट वालों ने वहां पे आपको रेंट पे कोई सर्विस स्पेस दी, तो इवेंट जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा वो लोकल मान लिया जाएगा, सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज करेंगे वो, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकल इवेंट का प्लेस। तो जो जीएसटी चार्ज होगी वहां की सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज होगी, उसका यहाँ इनपुट नहीं मिलेगा। तो वहां का जो भी इनपुट और भी ऐसे इवेंट बेस्ड सर्विसेज आप लोगे, यहां से मैं मूवमेंट करूंगा एज इफ वो मेरा ही प्लेस है। जैसे आज के डेट पे ज्वेलरी मूव करते हो आप, मतलब कोई आदमी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ज्वेलरी जाके बेचता है, उसको हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना नहीं पड़ता। वो क्या करता है, वो डिलीवरी चालान के बेसिस पे वहां मूवमेंट करता है, जो बिलिंग करेगा आईजीएसटी चार्ज करेगा, लोकल जो एड्रेस दिखाएगा, प्लेस बिलिंग एड्रेस दिखाएगा वो वेस्ट बंगाल का दिखाएगा। वो एक ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन नहीं है। हम्म, वहां पे भी सेम एप्लीकेबल होगा। तो इन दैट केस रिलेटेड पर्सन में नहीं आएगा जनरली वो, अगर रिलेटेड पर्सन नहीं आएगा तो सप्लाई नहीं हुआ। करेक्ट। बिल्कुल। जनरली कोई देता नहीं है, अगर रिलेटेड पार्टी नहीं होता तो पर्सनल गारंटी आई डोंट नो कितने लोग एक्सेप्ट करते हैं, अगर कोई डायरेक्टर नहीं हुआ तो। करेक्ट। हम्म, करेक्ट। अगर वो रिलेटेड पार्टी के डेफिनेशन में फुलफिल करता है जीएसटी में, तब तो हाँ, तो जीएसटी में खैर रिलेटेड पर्सन डिफाइंड है, उसमें अगर वो फॉल नहीं करता तो मेरे हिसाब से जीएसटी है ही नहीं, नो कंसिडरेशन इज देयर तो जीएसटी है ही नहीं। सप्लाई बिटवीन टू रिलेटेड अनरिलेटेड पार्टीज विदाउट कंसिडरेशन इज नॉट अ सप्लाई। नेक्स्ट, जीएसटीआर 1A। प्रैक्टिकली बहुत कम लोग करने वाले हैं इसको फॉलो। जहां पे सिर्फ बड़ा इंटरेस्ट का लाइबिलिटी इन्वॉल्व होगा वहां पे लोग दिमाग लगाएंगे, कोई अपना करंट सिस्टम बदलना नहीं चाहेगा। बट एनीवे, अब क्या आया है, 1 और 3B का डिफरेंस को मुझे जनरली जीरो करना रहता है, बट प्रॉब्लम ये है मुझे जीएसटीआर 1 फाइल होने के बाद ये रियलाइज हुआ कि मेरी कोई सप्लाई छूट गई है। तो मैं 3B में अगर ना दिखाऊं तो इंटरेस्ट लगेगा, और दिखाऊं तो मिसमैच आएगा। तो मेरे पास क्या उपाय बचता है, मैं आज 3B में दिखा देता हूं, अगले मंथ में 1 में करेक्ट करता हूं, फिर 1 3B मिसमैच होता है, साल भर में ठीक हो जाता है। तो डिपार्टमेंट ने बोला कि आप कि इस ये सब केसेस में कभी कभी गवर्नमेंट को लाइबिलिटी मिलने में दिक्कत होती है, कुछ कुछ लोग बोलते हैं हमें अमेंडमेंट करने का ऑप्शन दिया जाए, 1 3B मैच करना है मुझे। तो बिटवीन 1 से लेकर आफ्टर डेट ऑफ फाइलिंग 1 बिफोर फाइलिंग ऑफ 3B एक फॉर्म है जीएसटीआर 1A। हाँ, मतलब आप कभी भी 1 फाइल करो, 10 तारीख में, आप 1 तारीख को 1 फाइल करती तो उसके बाद भी आप करेक्ट। और अब आप सोचो, अब जीएसटीआर 1 में अमेंडमेंट किया मैंने, ड्यू डेट के विल बी अवेलेबल आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग 1, यू आर राइट, आफ्टर द ड्यू डेट और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग 1 विच एवर इज लेटर। अगर मैंने 12 तारीख को 1 फाइल किया तो 12 तारीख के बाद दिखेगा, 10 तारीख को फाइल किया तो 11 तारीख के बाद दिखेगा, राइट।
और जो 1A में है इट विल ऑटोमेटिकली गेट ऑटो पॉपुलेटेड इन 3B। आपने जो 1A में अमेंडमेंट कर दिया वो 3B में अपने आप जैसे आज वैल्यू ऑटो पॉपुलेट होती है वो हो जाएगी, जिससे कभी दोनों के बीच में मिसमैच नहीं रहेगा। हाँ, इसके थ्रू आप क्या क्या कर सकते हो? इसके थ्रू अगेन अब इसके थ्रू आप B2B अमेंड कर सकते हो, B2C अमेंड कर सकते हो। B2C का वैल्यू अब 2.5 लाख से जो अमाउंट था B2C लार्ज का वो अब हो गया 1 लाख रुपया। डेबिट नोट क्रेडिट नोट आप अमेंड कर सकते हो। तो ये सारी चीजें एज ऑफ नाउ आप अमेंड कर सकते हो। सॉरी, हाँ, तो एवरीथिंग कैन बी डन। आप उसका वैल्यू 0 कर दो, अमेंड कर दो या ऐड कर दो। ऐड भी कर सकते हो, अमेंड भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। नहीं नहीं नहीं, ना ना, करेक्ट करेक्ट, नील रिटर्न करने का जरूरत नहीं। करेक्ट, तो वही आपका B2CS होगा तो खाली आप वैल्यू अमेंड कर दो। B2B और B2B लार्ज सी है तो B2C लार्ज है तो आप उसका वैल्यू कर दो। नहीं नहीं, करेक्ट। अब आप समझ लो कि हम लोग का जीएस जो 2B है अब उसका क्या होगा। 2B में ये लाइन आइटम्स हमें दिखेंगे। अगर अमेंड हुआ है वैल्यू तो B2B ए में दिखेगा, और अगर ऐड हुआ है तो 1A में दिखेगा मुझे। तो फॉर अ रेसिपिएंट अगर मैं बात करूं, अगर अमेंडमेंट हो गया था अप टू द डेट ऑफ जनरेशन ऑफ 2B तो उस 2B में दिखेगा, नहीं तो फिर अगले मंथ के 2B में दिखेगा। 100 का 110 हुआ तो जैसे B2B ए आता है उसी तरह से दिखेगा। तब तो आप बाद में ही चेंज कर दोगे। हाँ, अभी तक देखते हैं कि ये फॉर्म कितना हिट होता है, बिकॉज गिवन दैट कि लोगों का ऑलरेडी एक मेथड ऑफ रिकंसिलिएशन, एक सिस्टम, सब कुछ डिजाइंड है। तो एटलीस्ट लोग ऐसा कर दे रहे हैं कि बहुत लोगों का 11 तारीख तक फ्रीज नहीं होता डेटा, तो वो लोग कुछ भी फाइल कर दे, फिर 1A में अमेंडमेंट कर दे। आई डोंट नो कितना लोग करेंगे, लेट्स सी। अभी भी IFF आया हुआ है, मैं तो देखता नहीं हूँ। अब मेरे पास 100 इनवॉइसेज है मेरे पास। 100 इनवॉइसेज में से मेरा 80 इनवॉइसेज फाइनल है। वो 80 इनवॉइसेज को मैं GSTR1 में दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि नहीं तो रेसिपिएंट मुझे पैसा नहीं देगा, क्योंकि उनको 2B में टाइम पे नहीं दिख रहा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं GSTR1 में वो 80 इनवॉइसेज अपलोड करता हूँ, 3B में उतना ही दिखता है, 20 इनवॉइस अगले मंथ अपलोड करता हूँ। तो अभी ये है और मेरा 1 3B में डिफरेंस आता है। तो मैं पूरा 80 इनवॉइसेज अभी कर दिया, 20 इनवॉइस को बाद में अपलोड कर दिया कुछ दिन बाद। मे बी सप्लाई रेसिपिएंट मुझे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको अगले मंथ क्रेडिट दिख जाएगा। इससे सिर्फ एक चीज नहीं बदला जा सकता, सिर्फ एक अमेंडमेंट पॉसिबल नहीं है इसमें, GSTN ऑफ द रेसिपिएंट, उसको नहीं बदला जा सकता। उसके थ्रू आपको बंद नहीं करना पड़ेगा अगले मंथ के, क्योंकि उससे वैल्यू भी अफेक्ट नहीं होता वैसे तो एग्रीगेट में। 3B में जो वैल्यूज है वही रहता है। करेक्ट।
B2C का तो मैं आपको बता चुका हूँ, 1 अगस्त से लिमिट रिवाइज हो रहा है। सेकेंड, रजिस्ट्रेशन कैंसिल्ड इफ रिटर्न नॉट फाइल्ड अपॉन रेवोकेशन ऑफ अर्लियर कैंसिल्ड रजिस्ट्रेशन। अब क्या हुआ, मेरा पहले रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ था क्योंकि मैंने रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं किया। उसके बाद मेरा रजिस्ट्रेशन जो कैंसिल हुआ वो रिवोक हो गया। अब मैं रिटर्न उसके बाद भी फाइल नहीं किया 6 महीने तक, तभी जाके मेरा रजिस्ट्रेशन दोबारा कैंसिल हो सकता था। पुराना पीरियड का मैंने फाइल कर दिया था, बट लास्ट का 1-2 महीने का मैंने छोड़ दिया। जब तक 6 महीना बीतता नहीं है मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे इन्होंने प्रोविजन लाया है कि अगर मेरा रेवोकेशन हुआ और उसके 30 डेज के अंदर मैं जितना पेंडिंग रिटर्न है वो फाइल नहीं किया, तो रेवोकेशन विल बी रिवोक्ड। वो बेसिकली रजिस्ट्रेशन विल बिकम कैंसल्ड अगेन। तो ये एक प्रोविजन है। और अगर रेट्रोस्पेक्टिव डेट से है तो जिस दिन से था उस दिन से लेके अभी तक का रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। GSTR 4 का ड्यू डेट को चेंज कर दिया गया। ISD मैकेनिज्म अगेन इस साल के बजट में आया था। ISD हैज बिकम कंपल्सरी। जहां भी मल्टी लोकेशन एंटिटीज हैं वहां ISD करना हमारे लिए जरूरी है। उसका रूल्स में मैकेनिज्म आया है, बट रूल्स आर वेरी सिमिलर। एक डिफरेंस ये है पहले वाले ISD और अभी ISD में कि RCM पहले नहीं होता था डिस्ट्रीब्यूशन, अब वो RCM का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अब सारे मल्टी लोकेशन एंटिटीज को ये डिसाइड करना पड़ेगा सिंस इट इज बिकम मैंडेटरी कि उनको कंप्लायंस करना है। नेक्स्ट, GSTR 2B में और 3B में 1-2 चेंजेस आए हुए हैं, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। अभी तक क्या था कि नेगेटिव फिगर्स आपका होता था, मान लो खाली क्रेडिट नोट है इस महीने, तो इन दैट केस मेरे GSTR 2B में वो ऑटो पॉपुलेट समरी शीट पे हो ही नहीं सकता, खाली नेगेटिव है। अब इन्होंने ये फैसिलिटी ला दिया कि वो रिवर्सल्स में ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा वो फिगर्स। नेक्स्ट, रूल 37A के हिसाब से अगर 30 सितंबर तक, यानी कि 23-24 के लिए 30 सितंबर 24 तक सप्लायर ने अपना 3B नहीं भरा तो मुझे अपना ITC रिवर्स करना है एज पर रूल 37। लास्ट ईयर तक ये इवैल्यूएशन हम लोग मैनुअली कर रहे थे। इस साल ये 2B के अंदर ऑटोमेटिक हुआ आएगा, ऑटोमेटिक वो 4B2 में रिवर्सल्स दिखेगा उसका, और फिर हमें वो सिलेक्ट करना है या तो रिवर्सल्स करना है या नहीं करना। ऑब्वियसली दैट विल बी अपॉन अस। या तो सप्लायर का पैसा रोकें या उससे बात करें या सप्लायर को बोले आप रिटर्न भरें। सप्लायर नहीं भरता तो हमें रिवर्सल करना है, जब वो भर देता है उसके बाद हमें उसको रीअवेल करना है विदाउट एनी टाइम लिमिट। हैज फाइल्ड, हाँ हाँ करेक्ट करेक्ट, हाँ करेक्ट। नेक्स्ट एक और है जो हम लोग काफी दिन से गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहे थे, फाइनली 3B के अंदर नेगेटिव वैल्यूज अब आ सकता है। मान लो इस महीने आपका क्रेडिट नोट है, कोई ITC नहीं है, आप उसमें माइनस फिगर भरो और आप सबमिट कर दो। इस महीने ऑब्वियसली कोई आउटपुट दिखेगा नहीं उसका। अगले महीने एक कॉलम रहेगा, आपका लाइबिलिटी 100 रुपया का है, अब पिछले महीने आपने -10 दिखाया तो आपका वो -10 का एक कॉलम रहेगा, आप नेक्स्ट महीने 90 रुपीज पे। ये पहले ऑप्शन नहीं था, हम लोग को मैनुअली 90 रुपीज दिखाना पड़ता था अगले महीने, इस महीने -10 भी नहीं दिखाते थे हम लोग। तो ये एक वेलकम चेंज है। बहुत लोग इसको ITC में दिखा देते थे जिसकी वजह से भर भर के लिटिगेशन हो चुका है। अगर मैं GSTR 9 की बात करूं तो इसमें थोड़े बहुत चेंजेस है, ज़्यादा नहीं है। ई कॉमर्स ऑपरेटर का एक सेपरेट कॉलम बना दिया गया जो रिपोर्ट कर सकते हैं। जो अभी 1-3B में भी चेंज आया था उसका कॉन्सिक्वेंशियल चेंजेस जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करते हैं 9(5) में या TCS वाले केसेस में, उन सबका GSTR 9 में भी रिपोर्टिंग होगा। अब नॉन GST सप्लाई को सेपरेटली रिपोर्ट करना है, पहले हम लोग इसको एग्जाम सप्लाई में रिपोर्ट कर सकते थे। टेबल 8A विल बी नाउ ऑटो पॉपुलेटेड फ्रॉम 2B। पहले 2A से ऑटो पॉपुलेट होता था जिसको हम रिकंसाइल करते रहते थे कि वो फिगर्स कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, नहीं पता। बट अब वो बोला जा रहा है कि इट फ्रॉम 23-24 एग्जैक्टली 2B का सम होगा वो, जिससे वो मल्टीपल सोर्सेस डेटा नहीं रहे, जिससे उनको धीरे धीरे वो 2A को ऑब्सोलीट कर रहे हैं। 2A का कोई रूल नहीं रहेगा आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम। ITC reversed in previous year and reclaimed in current year, इसका एक सेपरेट टेबल बनाया हुआ है 6H।
उसके बदले लोग टेबल 13 में रिपोर्ट कर देते, वो नहीं करना। 2 करोड़ का लिमिट एनुअल रिटर्न का वही है, 5 करोड़ का लिमिट अभी भी वही है विथ रिगार्ड टू 9C, वो कंटिन्यूएशन है एवरी ईयर का। तो मोस्टली आई थिंक रेलिवेंट चेंजेस यही है, बाकी आई थिंक थोड़ा सा ये आई डोंट नो कितना रेलिवेंट रहेगा ये अपवर्ड रिविजन कुछ कुछ, तो शुड बी कंटिन्यू या फिर कौन से वाली? ओके 16.4 का मैं अभी इसमें कवर नहीं किया हूँ बिकॉज एक्ट अमेंडमेंट नहीं आया उसका, वो तो एक्ट में अमेंड होगा। अभी तक मैंने सिर्फ नोटिफिकेशन और सर्कुलर्स जो हैं जो आ चुके हैं उसके ऊपर मैं आ रहा हूँ, बिकॉज उसके ऊपर एक्ट में क्या वर्बिटिम लिखा हुआ रहेगा वो अभी जब तक देखे नहीं तब तक बोलना मुश्किल है। ये आ जाएगा आपका बजट में, एक हफ्ते में आ जाएगा। तो 128A आएगा, 16.4 में अमेंडमेंट आएगा, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, तब फिर अपने उसके ऊपर सेपरेट डिस्कशन करेंगे तो बेटर होगा। हाँ रिकमेंड, हाँ मतलब हम लोग रिकमेंडेशन डिस्कस नहीं करें, हम लोग सिर्फ अमेंडमेंट्स और सर्कुलेशन इम्प्लीमेंट हो चुके हैं उसकी बात कर रहे हैं। आप देख लो, दिस इज अपवर्ड रिवीजन इन एक्सपोर्ट प्राइसेस। अगर मेरा 100 से 110 हो गया प्राइस, अगर मेरा प्राइस 100 से 110 हो गया तो इन दैट केस मुझे उस अमाउंट का रिफंड मिल जाएगा, उसका एक प्रोसीडियर है। टाइम लिमिट आपका अभी भी वो 1 ईयर ही है आई थिंक, और कुछ है नहीं। डिपार्टमेंटल अपील का एक लिमिट प्रिस्क्राइब किया गया है। प्लेस ऑफ सप्लाई, अगेन दीज आर ऑल सर्कुलर्स जो मतलब अमेंडमेंट जितने आपके नोटिफिकेशन थे दोज हैव बीन कवर्ड, तो इसमें नोटिफिकेशंस का और कुछ पार्ट नहीं बचा आपका। सर्कुलर्स आर ऑल अ लिटिल ओल्ड ऑब्वियसली, वो आपका 20-25 दिन पहले जो सर्कुलर्स आए थे वो सारे आए हैं आई थिंक, वो काफी सारे हैं वो सर्कुलर्स। हाँ मतलब जितने अमेंडमेंट्स आए हैं लॉ में वो सारे कवर हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ मत कीजिए, डिपार्टमेंट को बोल दीजिए आपको जो करना है आप करिए, हम लोग नहीं देंगे इंटरेस्ट पेनल्टी अभी। और डिपार्टमेंट भी बोल रहा है, हम लोग जो अच्छे ऑफिसर्स होते हैं उनसे मिलते हैं, बोलते हैं हाँ आप क्यों दे रहे हो। अच्छा ये तो अपील का ऑर्डर पास हो जाएगा उसके बाद भी आप पेमेंट कर सकते हो टैक्स का, खाली इंटरेस्ट पेनल्टी वेवर रहेगा फिर भी। नहीं नहीं, अपील डिसाइड होने का बात हो रहा है ना, अपील उनका ऑलरेडी हुआ हुआ है, उनका वो ऑर्डर बात कर रहे हैं कि आप जल्दी आओ, तो हाँ ठीक है हम आ जाएंगे, लेकिन हम पेमेंट नहीं करेंगे इंटरेस्ट पेनल्टी का बस। आप नहीं तो ठीक है ऑर्डर पास करेंगे हमारे अगेंस्ट में, फिर हम कॉल ले लेंगे उसका। राइट करेक्ट। अगर पेमेंट कर देते तो खाली टैक्स का पेमेंट करने से हो जाएगा। करेक्ट, सही बात है। नहीं बहुत लोग पेमेंट करेंगे, पेमेंट तो करेंगे, बट एमनेस्टी स्कीम किस फॉर्म में आता है ये नहीं पता। अभी मेन चीज़ क्या है कि अगर मेरे पास 3 इशू है उसमें, मुझे 2 इशू पता है कि बहुत क्लियर है मैं जीत सकता हूँ, और एक केस मुझे पता है कि मैं एक केस में मुझे पता है मेरा थोड़ा केस वीक है, उसी उसी सेम शो कॉज का पार्ट है। तो क्या मैं एक इशू को लेकर सिर्फ टैक्स पेमेंट करके इंटरेस्ट पेनल्टी का वेवर ले सकता हूं और बाकी 2 इशू में मैं लिटिगेट कर सकता हूं, या फिर मुझे ऐसा बोलेंगे या तो आप पूरा जो डिमांड है उसको पे करो टैक्स का और इंटरेस्ट पेनल्टी का वेवर तभी मिलेगा। तो वो कंडीशंस क्या अटैच्ड हैं उसके ऊपर सब डिपेंड करता है। हाँ तो क्या मैं खाली 5 लाख रुपए टैक्स पेमेंट करके खत्म करूं, या फिर मुझे ऐसा है कि 5 लाख के ऊपर पहले इंटरेस्ट पेनल्टी पेमेंट करना पड़ेगा। तो वो ये सब क्वेश्चंस आएंगे ऑब्वियसली, तो ये सब सारे 128 के बाद क्लियर हो जाएंगे। ये सब सारे सबका विश्वास स्कीम जो आया था उसमें बहुत क्रिस्टल क्लियर थी चीजें, उसी तरह से क्रिस्टल क्लियर रहेंगी चीजें मैक्सिमम केसेस में। कुछ सप्लाई ही नहीं है, एक्चुअल कंसिडरेशन कुछ नहीं है तो
अगर वो लिए हैं कंसिडरेशन तो उसके ऊपर जीएसटी। करेक्ट, बाहर वाला तो सप्लाई नहीं है इसमें। हाँ, वो 1% पर एनम अभी नया जो आया ना, 1% पर एनम और एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू विच एवर आया। ओपन मार्केट का जो है, तो इसमें अगर ट्रांसफर प्राइसिंग पे जो है, ट्रांसफर प्राइसिंग में वहाँ पे 5% का 5% का 1% has been mentioned out there। ओके, तो शायद उन्होंने सेम लॉजिक पे लेके आए हैं ये लोग। बहुत लोग सेल कर रहे हैं, उसको डालते हैं। हाँ तो अच्छा ही, उनके लिए तो सेम ही हो जाएगा वैल्यू फिर। आप अज्यूम करो कि इवन फॉर द पास्ट पीरियड दे विल लीगली दे विल ट्राई टू इम्पोज 1% अनलेस एंड अनटिल समवन इज वेरी अग्रेसिव और बैंक गारंटी से कंपेयर करते हैं। हाँ, Thank you, Subham, for sharing your expertise and knowledge on this subject. The implication of GST on corporate guarantee will take some time to get settled, और एक इन्फॉर्म डिसीजंस एसएससी को, टैक्सपेयर्स को और ऑडिटर्स को लेना है, डिपेंडिंग कंसिडरिंग द ओवरऑल सिचुएशंस एंड ए रीजनेबल इंटरप्रिटेशन, कि डिस्क्लोजर कुछ करना है या नहीं करना है, ऑडिट रिपोर्ट में प्रायर पीरियड का क्या करना है, किस तरह से करना है, ये सब चीज़ एक डिसीजन लेने का है। ऑडिट रिपोर्ट वाला पार्ट एक इशू है कि कुछ सजेस्ट करना है तो करो। मेरे हिसाब से एक विदाउट क्वांटिफिकेशन एक डिस्क्लोजर देना चाहिए ऑडिटर्स को, बस एक नोट देके कि जीएसटी का पेमेंट इस पे नहीं हुआ है। सी ऑडिटर को, मतलब ऑडिटर को ये देखने का जरूरत नहीं है कि रिसिपिएंट को आईटीसी अवेलेबल है नहीं है, और ये ऑडिटर का काम है नहीं। आप स्टिल दो अलग अलग लीगल एंटिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, इन दी आइज ऑफ लॉ दोनों अलग अलग एंटिटी है। आपको ये देखने की जरूरत नहीं है रिसिपिएंट को आईटीसी अवेलेबल है या नहीं है, आप सिर्फ ये देखिए एज एन ऑडिटर, मतलब आप सिर्फ इतना डिस्क्लोज कर दीजिए कि जीएसटी का पेमेंट ऑन कॉर्पोरेट गारंटी 17-18 से लेके अभी तक नहीं हुआ है। ये डिस्क्लोजर मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। अब या तो क्लाइंट का कोई इंटरप्रिटेशन है तो आप वो भी डाल लीजिए। सी अकॉर्डिंग टू मी, मैं आपको बताता हूँ। सी द वे आई अंडरस्टैंड ऑडिट विथ माई लिमिटेड नॉलेज, when there is a probable outflow, then there is a provision. When there is a possible outflow, there is a contingent liability. When there is a remote possibility, there is no disclosure. So the point is, as a auditor, do I need to take a call on a subject which is so specific to GST, जहां पे ये अगेन बेस्ड ऑन हिज इंटरप्रिटेशन कि वो इन तीनों में से कौन से केस में फॉल करेगा। If according to him there is a possible chance that there may be a liability which may come in, तो contingent liability obviously disclose करना जरूरी है। अगेन वैल्यूएशन का इशू आ जाएगा ना, कंटिन्यू बिल्कुल, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अगर आप अक्टूबर 23 के बाद का बात कर रहे हैं तो हिसाब से कंटिजेंट लायबिलिटी का डिस्क्लोजर होना चाहिए। नहीं नहीं, प्रोविजन। सी व्हेन देयर इज अ हाँ, पॉसिबिलिटी दोनों तरह का हो सकता है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। हो चुका है, सो अगेन प्रोबेबल, पॉसिबल, रिमोट। अगर Yeah. आपको लगता है कोई ऐसी चीज है जो पॉसिबल है
आपके अगेंस्ट आ सकती है। तो आप यहाँ पे तो अगर आपको लगता है, अगेन एज एन ऑडिटर आप इसको क्या ट्रीट करते हो? चार्ज नहीं किया करते अगर आपने जो किया है वो आपका रिलेटेड पार्टी है। अब अगर आपको वो रिलेटेड पार्टी है आपके सामने वाला ना तो रिलेटेड आर यू एंटिटी जिसके ऊपर में 100% है या नहीं है। अगर ऑडिटर वो स्टेप कभी लेके तो अगर प्रेजेंट लाइबिलिटी just because saying that I am not an auditor, मेरे को सामने वाले का पता नहीं है, even though you are saying that I am a related party, का मेरे तो next day तक तो आ ही जाएगा आपका एक यार बोल रहे हैं यार आज के दिन आप साइन करेंगे तो किसी लाइबिलिटी चार्जेस करेंगे दूसरा डॉक्यूमेंट है आपके लोग एक लाइबिलिटी है एक आपके तो 1% ये लोग बोल रहे हैं तो ये इन्होंने रूल से बोला है सर्कुलर बोल रहा है कि अगर एससीबी सस्पेंड करेगा या एक्ट में क्या कितना पावर है इनको मेरे हिसाब से डिस्कशन है कि क्वांटिफिकेशन किया गया है या लाइबिलिटी को लेके कैन ऑडिटर, मुझे नहीं पता, बट कैन एन ऑडिटर प्रोवाइड अ कंटीजेंट लायबिलिटी विदाउट क्वांटिफिकेशन? मतलब मेरे हिसाब से तो शायद दिखाना पड़ता है। मेरे हिसाब से वो शायद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से अपने को समझ में आएगा, बट मेरे नॉलेज में, लिमिटेड नॉलेज में यही है कि रिपोर्ट फिगर्स देना पड़ता है उसमें। साइलेंट रहना लेटर क्या होगा उसके बाद तो ऑडिट के लिए लेटर साइलेंट ही ना यार ऑडिट के लिए तो साइलेंट ही है तो की है कब क्वांटिफाई किया नहीं किया ठीक है, आई थिंक थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर गिविंग मी अ वेरी पेशेंट हियरिंग। आई थिंक डिस्कशंस बहुत इंटरैक्टिव रहा, तो ऑब्वियसली सीखने बहुत ज्यादा मिला। दिस वाज इन अ ग्रुप डिस्कशन फॉर्मेट, तो ज्यादा अच्छा रहा। आपको सब पता है के बाद आइए हाँ ओके would also like to thank our chairman, yeah, for giving a very thorough update also on the topic and that should be easier for us to not put too many questions. We have not been able to put so many questions to come and yes, it opened my mind to so many questions that there are नारायण जी का मेरे से फोन पे बात नहीं किए थे ना, मैंने कॉर्पोरेट गारंटी में